that is lecture 2. In the previous class, we discussed about the chapter 1 and chapter 2, that is village of Palampur, and then we discussed about people as resource. Today's objective is to cover the chapter 3rd and chapter 4 of the NCERT. Let's quickly look at those chapters. So yesterday we did village of Palampur and people as resource. Today we'll do poverty as a challenge and food security in India. So आज का objective है chapter 3 and chapter 4. Plus lot of students have submitted their answers. कुछ लोगों ने मेंस के अपने आंसर सबमिट किए हैं. So I'll tell some ways. I'll tell you the way how to write the answer. कुछ answers जो लिखे हैं they are not as per the required format. So I'll be discussing those aspects as well. So I hope everybody went through the PPT. सबने पढ़ लिया, देख लिया, and if you have any doubt, you can definitely ask in the class. Class के end में I'll take some questions. So let's start with the chapter number 3, that is poverty as a challenge. So what is poverty and how do you define poverty? Now, the definition of poverty is very subjective, and if you try to see, the poverty has been defined over the time by different people at different levels. Now, here the very basic definition is given. Poverty is a state where individuals or families lack basic means of sustenance, that is food, shelter, clothes, education, healthcare. Poverty एक situation है where people और population अपने basic needs को meet नहीं कर पाती है. Now what is basic need? Food needs हो सकते हैं, education need हो सकते हैं, health need हो सकते हैं, maybe at the very bare minimum, what bare minimum you need to survive and sustain life, that is what poverty definition can be understood. So poverty एक situation है, एक social malaise है, एक social phenomena भी आप कह सकते हैं. And why we're discussing poverty? Because a country like India faces huge challenge in terms of poverty. And we have to ensure कि किसी भी तरीके से हमारा जो poverty है उसको हम address करें. We try to ensure that the poverty part is taken care. Now, what are the types of poverty? Let's go. Now, poverty has been defined by government, and हम लोग इंडिया में primarily दो तरह से हम लोग poverty measure करते हैं. One is called absolute poverty, and second is called relative poverty. Now, what are the absolute poverty? हम लोग poverty कैसे measure करते हैं? There are two major ways to measure poverty. पहला तो ये है कि we try to understand कि आपके लिए basic means of survival के लिए आपको क्या क्या चाहिए. So basic means food and broadly non-food हो जाता है. तो food and non-food आपके needs होंगे. And for this, how much minimum money you need to survive. So based on that हम एक line decide करते हैं. इसको हम बोलते हैं poverty line. Okay? और जो भी ये जो फूड एंड नॉन फूड आपकी जो नीड्स हैं इसको पाने के लिए यू नीड मनी, राइट? सो उसका एक मॉनेटरी इवैल्यूएशन करते हैं. सो वी डिफाइन द लाइन बेस्ड ऑन दिस मच मनी यू नीड ऑन अ डेली बेसिस सो दैट यू डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी. जो लोग भी उस थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, जो आपने लाइन डिसाइड कर दी, जब मान लीजिए ये है, सो दिस इज, सो ये एक लाइन है, आपने डिफाइड कर दिया पॉवर्टी लाइन, और ये पॉवर्टी लाइन आपकी इनकम से जुड़ा हुआ है. एंड सो दैट इज हाउ वी डिफाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, household where income is insufficient to afford basic necessities of life, food, shelter and clothing. अगर हम basic necessities, again basic necessities का concept बहुत subjective है. We are assuming food and broad non-food needs जो population को चाहिए होता है. तो इस तरह से हम लोग poverty को define करते हैं. So one of the aspect is that आपको income निकालना पड़ता है poverty के लिए. आप assume करिए, आप try to find out what is the income of the population, और उस population में जो भी उनकी income है वो क्या poverty line से कम है या ज्यादा है. So if the people come below poverty line तो हम उनको BPL कहेंगे. So जो यहाँ पे जो लोग होंगे, population होगी, उनको हम BPL कहेंगे, और जो यहाँ होंगे उनको हम APL कहेंगे. Okay, so country like India अगर हम अभी की बात करते हैं, if we talk about now, almost 22% of India's population is below poverty line. Again the data might change. Second is called relative poverty. Relative poverty में हम लोग क्या करते हैं, we measure the inequality. Now country like India, हमारा major focus होता है poverty, absolute poverty, number of people जो below poverty line के हैं. But relative poverty is a very different kind of concept. It says that, now let's talk an example of maybe a country like USA. अगर हम USA की बात करते हैं, तो USA में जो rich है, super ultra rich, जो maybe 0.1% है, उनकी wealth बहुत ज्यादा है. Same is true for India as well.
बट यूएसए इट इज मच, द डिफरेंस इज मच स्टार्कर. वहां एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डेफिनेशन के हिसाब से द नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर शायद नहीं होगा या बहुत कम होगा, बिकॉज देयर ऑलमोस्ट एवरीबडी आर एबल टू मीट द बेसिक नीड्स. और जो मीट नहीं भी कर पाते हैं, मे बी गवर्नमेंट इज एबल टू हेल्प देम. बट there are people who are super rich, they are extremely rich, and they have so much money. They have, they have, yachts, they have, chartered planes, and they have some obscene amount of resources and income they have now. But when you compare the difference between the average person in terms of earning, lower level पे अगर हम बात करते हैं, or you measure at the higher level. Okay, sorry. So if you try to measure the people जो कि एवरेज इनकम अर्न कर रहे हैं एंड पीपल हु आर रिच, उनके बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये हम लोग इनइक्वालिटी मेजर करते हैं. सो इन अ कंट्री लाइक यूएसए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी माइट बी वेरी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो और मे बी 1%, बट रिलेटिव पॉवर्टी मस्ट बी वेरी वेरी हायर. तो हम कहेंगे जैसे मान लीजिए 1% ऑफ इंडिया, अभी लास्ट ईयर एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, एंड ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये लिखा था दैट 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, जो टॉप 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ इनकम, दे ओन 70% ऑफ इंडिया असेट्स. जो इंडिया के 70% एसेट है वो ओन करते हैं. सो यू कैन इमेजिन दैट मीन्स ये टॉप 5 टॉप 1% है, इनकी इनकम एंड वेल्थ इट इज ऑलमोस्ट 70%. इसका मतलब क्या है दैट 99% ऑफ द रेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हार्डली 30% ही असेट या इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन है. सो दैट इज हाउ वी डिफाइन द रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी मेजर्स द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, असेट्स, प्रॉपर्टी, लैंड, ऑल दोस थिंग्स. एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम इनकम लेवल में मेजर करते हैं, जो आपका मंथली या वीकली या डेली बेसिस पर होता है. So there are two definition of the poverty, measurement of poverty, absolute and the relative. Absolute poverty developing countries को focus ज्यादा होता है, and relative poverty developed countries ज्यादा focus करते हैं. Though in India we try to understand both relative as well as absolute poverty. Now ये पूरा definition है, you can see it refers to number of people relative to refers to poverty relative to people, region, nations. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे एवरेज इनकम, सो एवरेज इनकम बिहार की में भी 40,000 है. Okay, so this is the average income of somebody residing in Bihar. In maybe in Tamil Nadu it is 140,000. So आप देखिए almost 4 times है. Similarly, maybe Gujarat और for that matter Haryana maybe 160 है, 160,000 है, यानी 1 lakh. Delhi is about 3 lakh. Okay, so ये 40,000 है, 1.4. तो आप देखिए कितना डिफरेंस है. एवरेज इनकम अगर आप देखोगे तो रीजन वाइज वैरी कर रहा है. सो हियर वी कैन से दैट एवरेज इनकम यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं. सो वी कैन से इंडिया रिलेटिवली पुअर, बट व्हेन वी कंपेयर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, सो इंडिया इज पुअर. बट व्हेन वी कंपेयर विद डेवलप्ड कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली द रिचर कंट्रीज, वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी ज्यादा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है कम है. यहाँ पे हम बहुत सारे मेजर यूज करते हैं, जैसे लॉरेंस कर्व, जीनी कोएफिशिएंट. ना ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में मैं डिटेल में लूंगा, बिकॉज लॉरेंस कर्व एंड जीनी कोएफिशिएंट आर प्रॉब्ली अभी पढ़ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा. सो आई विल बी टेकिंग दोस टॉपिक्स अराउंड दैम. देन बट वी मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, नंबर ऑफ पीपल, यहाँ हम इनकम निकालते हैं. दिस कंसेप्ट इज मोर रेलेवेंट फॉर द डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस, बिकॉज यहाँ पर जो मासेस हैं दे आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स. सो इंडिया में अगर हम मेजर करते हैं तो 22% है. अगेन दैट डेटा वेरीज बाय डिफरेंट जैसे इसमें 29.8% दे रखा है. ये एक तेंदुलकर रंगाराजन कमेटी है उसके हिसाब से है. ओके, मैं जो अभी बता रहा था आपको तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से बता रहा था. ओके, सो देयर वाज अ तेंदुलकर कमेटी, सुरेश डी तेंदुलकर, उनकी कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी करंटली 22% है. दैट इज 2011-12 की अगर हम बात करते हैं तो. सो दैट इज हाउ वी मेजर, बिकॉज पॉवर्टी मेजरमेंट अपने आप में एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है कि आप मेजर कैसे कर रहे हैं. दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी. अब हम इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, यानी एक पुअर पर्सन अगर कोई है तो उसके इश्यूज क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पुअर पर्सन. हाउ, आपने कह दिया कि ये पुअर है, बट हाउ डू यू डिफाइन पुअर पर्सन. सो पुअर पर्सन हैव ऑलमोस्ट नो और लिमिटेड एसेट्स, या आप नो कह लीजिए या लिमिटेड एसेट्स होगा. ओके, सो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो लैंडलेसनेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. रूरल एरियाज में अगर आप देखेंगे तो जैसे कल हम लोग विलेज ऑफ पालमपुर डिस्कस कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 1/3 पीपल who belong to scheduled caste, they are mostly landless people, so automatically they will be poor. Then unemployment, most of the time poor people
जो इनके पास इनकम कम है, प्रॉपर्टी कम है, एसेट नहीं है, दे नॉट एजुकेटेड ऑल्सो, सो नेचुरली वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन उनकी किसी सिचुएशन में ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में सीजनल आपको जॉब मिलती है, तो सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। सो दीज पीपल फेस प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडिया आपको देखने को मिलेगा। सेकंड इज द साइज ऑफ फैमिलीज। मोस्टली जो पुअर फैमिलीज होते हैं, दे हैव अ बिगर फैमिली साइज। ओके, सो बिग फैमिली साइज, यू ऑल, आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता है दैट इंडिया इज अ कंट्री वेयर सो मेनी पुअर आर लिविंग, एंड व्हाई इफ दे, अगर वो पुअर है, सो इफ दे हैव लेस इनकम, व्हाई दीस पीपल हैव सो मेनी पीपल इन द फैमिली, व्हाई डोंट दे कीप अ स्मॉलर फैमिली? नाउ पुअर थिंक्स डिफरेंटली। पुअर ये सोचता है कि आई हैव, द चिल्ड्रन आर माई एसेट, एंड दे नो दैट देयर इनकम साइज इज लेस, सो कहेंगे घर में 4 लोग कमाने वाले होंगे, सो एवरीबडी विल अर्न, सो दैट इज हाउ द नेट इनकम ऑफ द फैमिली विल इंक्रीज, बिकॉज दे ट्राई टू सी दैट वे। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नो कि उनकी बड़ी फैमिलीज में अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, सो दे स्टिल नो कि भाई हाँ ठीक है, अगर मे बी कम बच्चे होंगे, अगर डेथ हो जाएगी तो सडनली हाउ विल सर्वाइव? सो हैव बिगर नंबर ऑफ फैमिलीज, हैव मोर चिल्ड्रन, so even if few will die due to problems like health issues, problem of lack of nutrition, problem of access of resources, जो भी होगा, so हम उसको handle कर पाएंगे, because they look at the members of the family as income generating sources. They also use them as child labor. So that is why logically जो है size of the families जो है बढ़ जाता है among poor people, because poor people tend to have bigger families. Illiteracy is also a problem, especially among the poor people. Illiteracy अगर रहेगा तो उनके पास रिसोर्सेज भी कम रहेंगे, इनकम, उनके पास स्किल्स कम रहेंगे, एंड हेंस दैट इज हाउ इलिटरेसी इज। तो कोई इलिटरेट है तो आप कहोगे कि भाई chances are there that he'll become poor because he or she might not have the relevant skill to get good income in the job market. Then automatically poor poor people have a health issues and malnutrition. ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कल मैं डिस्कस कर रहा था कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो malnutrition है। Then the issues of child labor. Who is child labor? Anybody? What is the purpose of a child? एक बच्चे का क्या काम होता है? Typically जो हमारा किसी भी कंट्री में हम, children have two work, that is study यानी education, and they need to play. That is the only two things that children are supposed to do. And but because the family is smaller, the family is bigger, and they feel that कि बच्चा मुझे हेल्प कर सकता है। लेट्स से आई एम अ स्मॉल फार्मर विद लिमिटेड इनकम, छोटा सा प्लॉट है, आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू हायर अ लेबर, सो आई विल आस्क माय सन और डॉटर टू हेल्प मी ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन। मैं उसका स्कूल भी छुड़वा दूंगा। देन बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ द इनकम, बिकॉज इनकम बहुत कम होती है, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम एंड वर्क एंड टू अर्न फॉर द फैमिली। अगर आप देखोगे इवन अर्बन एरियाज में, स्लम एरियाज में, आप बहुत यंग बच्चे जो है या लड़के या लड़की जो है, दे आर सपोज्ड टू डू चाइल्ड लेबर बिकॉज द फैमिली को उसकी जरूरत होती है। सो चाइल्ड लेबर इज अ फिनोमिना व्हिच इज लिंक्ड विद पॉवर्टी। अगर ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम एड्रेस होगा, सो दीज प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली गेट एड्रेस्ड। देन हेल्पलेसनेस, दीज पीपल आर हेल्पलेस, दे आर मोर वल्नरेबल, दे आर सोशली एक्सक्लूडेड। ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सारा भी देखने को मिलता है। दैट इज ट्रू फॉर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। सो टिपिकली दीज आर इश्यूज रिलेटेड विद पॉवर्टी, यानी जो भी पुअर पॉपुलेशन होती है उनमें ये इश्यूज आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी साइकिल। इनफैक्ट ये पॉवर्टी साइकिल तो बहुत सिंपलिस्टिक है, एंड जो क्लास 11th की जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसमें पॉवर्टी और डिटेल में पढ़ाऊंगा। देयर रेगनर नर्स, ही रोट अबाउट विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी, जो पुअर पर्सन है, दे थिंक डिफरेंटली एंड दे आर इनटू विशियस साइकिल, एक विशियस साइकिल में होते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट द विशियस साइकिल। देखते हैं यहाँ पे आमतौर पे द पीपल हु आर पुअर, दे डू नॉट हैव एजुकेशन, दे आर इलिटरेट, दे डू नॉट हैव स्किल, सो ऑटोमेटिकली दे हैव लेस इनकम। उनकी पर्सनल इनकम कम होगी, बिकॉज मे बी मैनुअल लेबर करेंगे, अनस्किल्ड वर्क करेंगे, तो आप नेचुरली उनको जॉब मार्केट में उनकी वैल्यू कम होगी। व्हेन द इनकम इज लेस, ऑटोमेटिकली लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फूड एंड सेफ वाटर फैसिलिटीज वो ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। दैट मीन्स आपके पास गुड क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड एक्सेस नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहेगी, आप स्लम एरियाज में रहोगे। देन हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन सैनिटेशन। नाउ एक देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हंगर। हंगर मतलब आप भूखे हो। नाउ हंगर का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ खाना मिल जा रहा है, यू हैव फूड, दैट मीन्स यू आर नॉट हंग्री।
नो, हंगर इज ऑल्सो सीम, हंगर दो लेवल पे होता है। एक तो मतलब एक्सेस ऑफ फूड, कि आपको फूड का एक्सेस नहीं है। दूसरा, द सेकेंड एंगर हंगर कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। आपने लेट्स से द डेफिनेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि भाई 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। तो अगर आप 2400 कैलोरीज का एक्सेस है आपको, अगर आप खाना जो आप खाते हो उसमें आपको 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में मिल रहा है, तो आप जो है नॉन पुअर हो। अगर आपको 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में मिल रहा है तो आप नॉन पुअर हो। नाउ बट रिमेंबर, यहाँ पर हम लोग सिर्फ कैलोरी की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, आप ब्रेड खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं सिर्फ, मे बी आपको कैलोरीज का तो मिल जाएगा, मे बी एक्सेस ऑफ फूड तो है, फूड की प्रॉब्लम नहीं है। बट न्यूट्रिशनल, व्हाट अबाउट, बिकॉज इन फूड यू नीड maybe you need carbs, you need protein, you need vitamins, you need minerals, आपको हर चीज की जरूरत है। आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, मे बी आपके फूड में शायद कार्ब्स होगा, शायद सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, मे बी आपको विटामिन एंड प्रोटीन या फिर मिनरल्स विच आर नीडेड इन द एज पर द रिक्वायर्ड लेवल पे जो चाहिए वो शायद नहीं होगा। सो यू माइट से दैट एक्सेस ऑफ फूड इज देयर बट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है। खाना तो मिल रहा है बट खाने की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है दैट इज नॉट एबल टू मीट योर नीड्स। वो मिनरल्स में आपके आयरन होगा, जिंक होगा, आयोडीन होगा, कुछ भी हो सकता है, विटामिन ए बी सी डी, आप देखते हो कितने तरह का विटामिन। सो बॉडी हैज अ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, वी कैन नॉट से दैट जस्ट बाय हैविंग वन फूड इट विल इंश्योर कि वो रिक्वायरमेंट आपको मिल पा रही है। सो हंगर इज अ प्रोसेस, इज अ सिचुएशन व्हिच इज लिंक्ड इवन विद पीपल हु आर पुअर, या जिनको आप फूड दे भी रहे हो तो भी उनको वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक्सेस ऑफ फूड तो है। जो हमारा ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स, जो अभी ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स आया है, इंडिया हैज अ वेरी लो रेटिंग। इवन दो, क्या हमारे इंडिया में कोई भुखमरी से मर रहा है? नहीं, भुखमरी से आपको शायद रेयरली ऐसा केस मिलेगा। 1943 में 1943 में ग्रेट बंगाल फैमिन आया था, और ग्रेट बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, एक्सेस ऑफ फूड नहीं था। उसके बाद से हमने 50s के बाद या इवन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम फूड की एक्सेस की प्रॉब्लम रही है, बट हमने फिर भी मैनेज कर लिया है, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया। सो नो, पीपल डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ फूड। अगर कहीं हुआ है तो कहीं अपवाद था, कहीं एक दो केसेस आ गए हो, ऐसा सिचुएशन होगा, बट मोस्टली एक्सेस ऑफ फूड इज ऑलरेडी देयर। तो फूड का प्रॉब्लम नहीं था बट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग मिड डे मील स्कीम लेते हैं तो हम मिड डे मील स्कीम में मेन्यू डिफाइन होता है कि इतना ग्राम जो है आपको फैट होना चाहिए, इतना ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए, इतना ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स होने चाहिए, सो एन नंबर ऑफ थिंग। सो साइंटिफिकली एक फॉर्मूला बना के एंड बेस्ड ऑन दैट द फूड इज गिवन टू द चिल्ड्रन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हंगर एंड पुअर न्यूट्रिशन, आपकी इनकम कम है, सो यू वुड नॉट हैव द क्वालिटी फूड, न्यूट्रिशनल फूड। नेचुरली व्हेन यू आर मैल न्यूट्रिशन, आपके बच्चे स्टंटेड होंगे, आप भी वीक होगे, सो यू माइट लिव अ डिजीज लाइफ, यू हैव अ पुअर हेल्थ। एंड जब पुअर हेल्थ होगा सो योर कैपेसिटी टू वर्क विल बी इम्पैक्टेड। जो वर्कफोर्स होगा पॉपुलेशन का वो अनहेल्दी होगा। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे पॉपुलेशन इज अगर वो हेल्दी पॉपुलेशन, हाउ दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो एक हेल्दी पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। सो विशियस साइकिल का मतलब पीपल हु आर इन दिस साइकिल दे आर नॉट एबल टू कम आउट। सबसे इसमें एक और सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है दैट इज हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, सो एवरीथिंग इज सेकेंडरी नाउ। राइट नाउ वी आर फेसिंग अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, वी आर फेसिंग अ नेशनल हेल्थ क्राइसिस। तो अभी सब कुछ गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, सब कुछ सस्पेंड कर दिया है। द कंसर्न इज टू एड्रेस दिस हेल्थ क्राइसिस एंड देन सेकेंडरी फिर इकोनॉमिक क्राइसिस या बाकी हम बाद में हैंडल करेंगे, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम इज इमीडिएट। एक फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हेल्थ, अगर वहां पे क्राइसिस आती है तो हेल्थ क्राइसिस को आप हैंडल करोगे। इवन यू माइट हैव टू टेक मनी, आपको डेट लेना पड़ेगा, आपको कर्जा लेना पड़ेगा, तो भी आप करोगे। सेम इज ट्रू विद पुअर पीपल एज वेल। इंडिया में आज भी अगर हम देखते हैं तो पुअर पीपल आर वल्नरेबल, उनकी इनकम कम होती है, सेविंग्स कम होती है, एंड इफ दे समहाउ बिकम अनवेल, और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, वो भी वीक है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, डायग्नोस्टिशियंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो पुअर पीपल आर नॉट एबल टू गेट द क्वालिटी हेल्थ केयर, और उसमें दे हैव टू डिपेंड ऑन द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में उनके पास इनकम भी नहीं होती है, कम होता है तो दे टेक लोन एंड दे आर इन अ सिचुएशन ऑफ परपेचुअल डेट सिचुएशन में होते हैं। तो यहाँ अगर कुछ कमाया, कुछ सेव भी किया, तो आप डेट में चले जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू कम आउट।
सो देयर इज अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और आप इससे हमें निकलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। गवर्नमेंट, अगर आपको कल आपने एक वीडियो देखा होगा जो मैंने बनाया था, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में फोकस क्या है? इंडिया की जो 50 करोड़ पॉपुलेशन है, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम, एंड उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में कोई भी उनका ऑपरेशन है, कोई डिजीज होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, एड पब्लिक और प्राइवेट, पूरा पूरा गवर्नमेंट आपको फंड करेगी। सो दैट इज बिकॉज इट इज, जो आयुष्मान भारत की नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें ये देखने को मिला था, दैट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इश्यूज, 6 करोड़ पीपल ऑन एन एवरेज इंडियन, यानी एवरेज 6 करोड़ पीपल, दे मूव बिलो पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है। और अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो दे हैव टू बोरो मनी, एंड फिर वो एक परपेचुअल डेट में हो जाते हैं। डिजीज हो जाएंगे तो आपको वर्क वर्क लॉस भी होगा, आप काम भी नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे तो इनकम जो आ रही है वो भी रुक जाएगी। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो आयुष्मान भारत इज लुकिंग एट एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम, कि अगर पावर्टी, अगर हमारी जो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर है वो जो है एड्रेस हो जाए। पोषण अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, पोषण अभियान में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की गई है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यू नो आंगनवाड़ी सिस्टम, यू नो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस तरह के मेगा गवर्नमेंट के स्कीम चल रहे हैं जहां पर इन सारे एस्पेक्ट को देखा जाता है, हेल्थ न्यूट्रिशन में फोकस किया जाता है। सो पॉवर्टी हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन। पॉवर्टी हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद वीक workforce. Poverty has strong linkage with health crisis of the country. सो ये सारे प्रॉब्लम इंटरलिंक्ड है, एंड दे दैट इज वाई पॉवर्टी की जो साइकिल है उसको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू पुअर, नाउ ट्राई टू सी पुअर पीपल। पुअर पीपल, अ वेरी पुअर पीपल, जो पीपल हु हैव लैक ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल, दे आर सोशली एक्सक्लूडेड एंड दे बिकम वल्नरेबल। They are excluded from what? They are excluded from taking better decision. They are excluded from better quality lifestyle. They are excluded from getting good life chances. सोशोलॉजिकल बहुत सारी स्टडीज हुई, सोशोलॉजिकल स्टडीज में ये देखा गया, एक बहुत ही चिल्ड्रन फ्रॉम अ लोअर हाई आईक्यू चाइल्ड, फ्रॉम अ पुअर फैमिली, एंड अ relatively average IQ child from a maybe well off middle class or relatively maybe prosperous family. ये यूके में एक स्टडी हुआ था, आपका स्टडी का स्कोप नहीं, बट मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो एक स्टडी किया गया और इनको इनके बाद फिर 20 years बाद इट वाज चेक दैट हाउ दे आर डूइंग, 20 साल बाद देखा गया। इट वाज फाउंड दैट द चाइल्ड फ्रॉम द पुअर फैमिली, इवन दो ही वाज हाई आईक्यू, ही वाज रिलेटिवली लिविंग अ वेरी लो क्वालिटी लाइफ। वो लो क्वालिटी लाइफ जी रहा था, मॉडेस्ट लाइफ जी रहा था। एंड एवरेज आईक्यू वाला जो एक अच्छे फैमिली में था, वो उसकी जो लाइफ थी वो शायद जो उसके पेरेंट्स ने दी थी वो उससे शायद अच्छी जी रहा था, या एटलीस्ट उस बराबर जी रहा था। दैट मीन्स यू आर, your life chances also depends on the level of resources, the access of resources, the income you have. जो आपकी स्किल है वो सेकेंडरी हो जाती है, बट आपको अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए, अच्छे एजुकेशन की, अच्छे जॉब की, इंफॉर्मेशन की, अवेयरनेस की, जानकारी की, शायद वो नहीं होगी। यू आर सेटिंग इन दिल्ली, और मे बी यू हैव एक्सेस टू आप अच्छे फैमिली से आते हो, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, या आप अच्छे बिजनेस करते हैं, सो आपको ये सारों का चीजों का एक्सेस ऑटोमेटिकली डे वन से मिलता है। यू प्रॉब्ली इज नॉट, यू आर नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम। But poor people, even though they could be more talented than you, but they are socially excluded, they are more vulnerable. दूसरा, हमारी जो सोसाइटल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन। सोशल एक्सक्लूजन जो है देखने को मिलता है, और उस एक्सक्लूजन सिस्टम में दीज पीपल डिड नॉट हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगर आज भी देखते हैं हमारे यहाँ, अगर हम 22% पावर्टी है, तो मैक्सिमम पावर्टी SC STs में है, और SC STs में उनका लैंड का एक्सेस या लैंडलेसनेस वो सबसे ज्यादा है। जो आपको अर्बन एरियाज में आपको लेबर दिखाई देते हैं, कैजुअल लेबर दिखाई देते हैं, दे मोस्टली बिलोंग टू SC ST कैटेगरी। सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सोशल injustice, historical wrongings which was done maybe by us only, maybe हमारे forefathers ने किया for hundreds of years। ठीक है, सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी। अ पुअर पर्सन इज मोर वल्नरेबल, उसके पास ऑप्शंस नहीं है, चॉइसेस नहीं है। you you are educated, you have choice, you can live what you want to do, you want to prepare for the examination, you can sit in Delhi, you can sit in at home, you have access to coaching institutions, आप एफर्ट कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए पेरेंट्स से आप सिर्फ कहोगे, पेरेंट्स आपको देंगे। नाउ हियर
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रिसोर्सेज को या एसेट्स को, उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे अच्छे से यूज कर पाते हो, एंड यू आर एबल टू डू better. But the poor people, they are more vulnerable because of lower options in terms of getting assets, education, health, job opportunities. और इसीलिए आप देखोगे रिजर्वेशन होता है, इनकम बेस्ड रिजर्वेशन का प्रोविजन है, पेंशन का प्रोविजन है, नो नॉट यस, पुअर के लिए पेंशन का प्रोविजन है, चाइल्ड मतलब जो पुअर फैमिलीज हैं उनको स्कॉलरशिप का प्रोविजन है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स. बट वो वेलफेयर स्कीम शायद अपने आप में पूरी नहीं है, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर. सो प्रॉब्लम ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन देखने को हमेशा मिलता है. और इंडिया में हम लोग जो पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं वो कंजम्पशन एंड इनकम लेवल पे करते हैं. इसको भी अभी हम आगे आपको समझाऊंगा. नाउ पॉवर्टी मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एंड दीज आर नीडेड टू सर्वाइव. तो ये सारा जो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, पुअर पीपल आर वल्नरेबल, दे आर एक्सक्लूडेड, एंड दैट इज हाउ दे हैव अ पुअर और लोअर लाइफ चांसेस. ठीक है. अब सवाल उठता है कि हम पावर्टी एस्टिमेट कैसे करेंगे. पावर्टी एस्टिमेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं. सो लेट्स गो लिटिल इन द हिस्ट्री. एक कहानी की तरह पूरा आपको समझाता हूँ. 1958 में जब पावर्टी एस्टिमेशन के लिए हमेशा ये कहा गया कि भाई पावर्टी लाइन डिफाइन करेंगे, बट अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दे केम विद देयर ओन मेथड्स एंड फार्मूला, एंड दस इन 1958 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका आप बार बार नाम सुनते हो आजकल, दे आर द पीपल हु आर डूइंग द एंटायर कोविड क्राइसिस में टेस्टिंग एंड ऑल जो कर रहे हैं. सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च केम विद द रिसर्च, एंड 1958 में उन्होंने कहा कि 2400 कैलोरीज जो है जिनको भी एक्सेस है, दैट इज इन रूरल एरियाज, एंड 2100 कैलोरीज जो अर्बन एरियाज में है, जिनको भी इनका एक्सेस है, दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, यानी ये एपीएल होंगे. पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस मच कैलोरीज, दे विल, यानी इससे नीचे रहेंगे, दे विल बी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इस तरह से उन्होंने कहा डेफिनेशन. और इस मेथोडोलॉजी को सबसे पहले, मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूं, आगे की स्लाइड्स में है. सबसे पहले जो वाई के अलग कमिटी एक आई थी 1979 में, वाई के अलग कमिटी, उन्होंने पहले इसको स्टडी किया, एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने पावर्टी लाइंस को मेजर किया. बाद में दिस वाज 1979. बाद में एक लकड़ा वाला कमिटी आई, अगेन लकड़ा वाला कमिटी आई. लकड़ा वाला कमिटी ने भी सेम फॉर्मूला को यूज किया. बट रिमेंबर यहां पर एक प्रॉब्लम थी. यहां पर इंडिया इज द कंट्री वेयर नोइंग इनकम ऑफ द पीपल इज वेरी डिफिकल्ट. आपको कैसे पता कि कौन कितना अर्न कर रहा है. लेट्स से यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट को पता है आपकी ये इनकम है, सो देयर इनकम कैन बी कैलकुलेटेड. अ बिजनेस पर्सन इज देयर, उसकी भी इनकम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? बाई मे बी वो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उससे हम उसकी इनकम निकाल लेंगे. कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वहां पे भी हम उसकी इनकम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहा है. सो कैलकुलेटिंग हियर मे बी इनकम प्रॉब्ली इज इजियर. बट व्हाट अबाउट, लेकिन ऐसा मे बी 8 to 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है जहां पर इनकम डिफाइंड है, या इनकम गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हैज द इंफॉर्मेशन, और इनका हमें इनकम पता है. सो वी कैन से कि ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है. बट व्हाट अबाउट पीपल जो मे बी पेटी लेबरर्स हैं, या पेटी ट्रेडर्स हैं, छोटा सा दुकान डाली हुई है, डेली वेज लेबरर्स हैं, और मे बी सब्जी बेच रहे हैं, या फिर ऐसे. सो दे अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन. इनका क्या है, इनकी इनकम क्या है? तो इनकम निकालना बहुत मुश्किल था, बिकॉज दे हैव इरेगुलर इनकम, देयर इज नो डिफाइंड इनकम. और ये सारे दीज ऑल पीपल आर कॉल्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी. ठीक है, इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं हम लोग. सो ये जो 80%, 85%, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये डेटा नंबर चेंज नजर आएगा. बट इट इज एक्सेप्टेड व्यू दैट दिस नंबर इज डेफिनेटली नॉट लेस देन 80%. ये नंबर 80% से कहीं ज्यादा है. तो ये 80% भी अगर हम मानते हैं तो दीज पीपल आर इनफॉर्मल, दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनकी एवरेज इनकम भी कम है, और इनकी इनकम की इंफॉर्मेशन भी नहीं है. तो हमने क्या किया कि आईसीएमआर के डेटा के हिसाब से ये कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हम लोग पावर्टी लाइन डिफाइन करेंगे. 2400 कैलोरीज एंड 2100 कैलोरीज रूरल अर्बन एरिया में जो भी आपको खरीदने के लिए, अगर जो खाना आप खाते हो, तो 2400 कैलोरी का खाना आप खाते हो, तो उस खाने को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए. तो इसके बेसिस पे हमने एक निकाल लिया, लेट्स से मे बी 40 रुपीज, यानी पर पर्सन 40 रुपीज जो है 2400 कैलोरीज का एक्सेस मिल जाएगा रूरल एरियाज में. अर्बन एरियाज में मे बी 50 रुपीज, लेट्स से, आई एम जस्ट मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ. तो इस तरीके से हमने निकाल लिया. नाउ वी डोंट हैव द इनकम इंफॉर्मेशन, इनकम का इंफॉर्मेशन नहीं है, बट व्हाट वी विल डू, हम
फिर नेशनल जो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल सैंपल सर्वे, उन्होंने क्या किया, कहा कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालेंगे। हम इनकम तो नहीं निकाल सकते बिकॉज इनकम का इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। अगर सबकी सैलरी बैंक में आती तो हमें पता होता। इफ एवरीबडीज इनकम, एवरीबडी सब कुछ डिजिटल हो जाता तो हमें शायद पता होता। बट इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश बेस्ड इकोनॉमी होती है, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन निकालना किसकी इनकम कितनी है, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो व्हाट डू वी डू, इंस्टेड ऑफ इनकम हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ने क्या किया, एक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकाला। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक डेटा लिया, सैंपल सेट लिया, मे बी 50,000 लोगों का, और 50,000 लोगों को उन्होंने सर्च किया फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। एंड उस सैंपल्स का जो 50,000 का जो, विल कम टू दैट, तो 50,000 का जो सैंपल सेट है उसमें उन्होंने कहा कि इनका मंथली एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। तो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ, इन पे पर्सनली पूछा गया कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। तो मान लीजिए 100 लोगों को टेस्ट किया और 100 लोगों ने कहा कि 100 में से 20 लोगों का मंथली एक्सपेंडिचर, उन्होंने कहा कि सर हमारा मंथली एक्सपेंडिचर जो है पर डे 30 रुपीज हिसाब से, 30 रुपीज पर डे इंटू 20, यानी हमारा मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 600 है। फैमिली ऑफ 5 हो गया तो 3000 हो गया। ओके, ये 20% पॉपुलेशन हो गया। एंड 80% जो पॉपुलेशन हो गया उनका मंथली एक्सपेंडिचर इट इज लेट्स से इज मोर देन 30 रुपीज, उनका 30 से ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो 20% पॉपुलेशन है, अब हमने पावर्टी लाइन निकाला तो पावर्टी लाइन 40 रुपीज है, बट ये लोग का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 30 रुपीज है, या मे बी मान लीजिए 40 रुपीज है, उससे कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% लोग का जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, वो पावर्टी लाइन के लेवल से नीचे है। और हम यहाँ पे ये मानते हैं लोअर इनकम ग्रुप में कि वो जो खा रहे हैं वो पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं दैट इज देयर इनकम ऑल्सो, बिकॉज जो लोअर इनकम ग्रुप में दे प्रैक्टिकली हैव जीरो सेविंग्स, सो वट एवर दे आर कंज्यूमिंग इज इज द इनकम दे हैव। एंड दैट इज हाउ हमने एक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकालना शुरू किया 90s से, और उसके बेस पे हमने निकाला कि कितने लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं, पावर्टी लाइन के ऊपर है, बिकॉज इनकम निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो हम उन फैमिलीज का एवरेज, और ये 50,000 का हम क्या करते हैं, ये एक सैंपल सेट है, और इसको हम सैंपल सेट को पहले हम निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे जानना हो कि यूपीएससी का मान लीजिए पेपर आता है प्रीलिम्स का, और जानना है कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर टफ था या इजी था, तो मैं 50 बच्चों से, मैं एज अ मीडिया पर्सन में गया और 50 बच्चों से पूछा कि भाई पेपर का कैसा लेवल था। नाउ 50 बच्चों को में से जो है, जो भी मुझे एवरेज व्यू मिला, उस बेस पे मैंने कह दिया कि पेपर टफ था या पेपर इजी था। बट रिमेंबर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द एंटायर पीपल हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन। बट हमें एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि पेपर टफ था, इजी था। तो सैंपल सेट विल ओनली गिव इंफॉर्मेशन ऑफ 50,000 पीपल, बट वी कैन बेस्ड ऑन दिस सैंपल हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे 130 करोड़ पॉपुलेशन पे, यानी इसी के बेस पे हम पूरे पॉपुलेशन का एक्स्ट्रापोलेशन कर लेंगे। बट ये जो सैंपल सेट होता है, ये सैंपल सेट बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेट होता है, इट इज नॉट रैंडम, रिमेंबर। और हम जब साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं सैंपल सेट को, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग हैं, इनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट पावर्टी लाइन हमने निकालना स्टार्ट किया। तो 90s में जो पावर्टी लाइन हमने मेजरमेंट वट एवर वी स्टार्टेड, वी वर एबल टू डू थ्रू मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और हमने एक एक्सपेंडिचर का डेटा लिया और कैलोरी में डिफाइन किया कि इतना कैलोरी में कितना जो है होना चाहिए, और उसके बेस पर हमने जो है पावर्टी लाइन का डेफिनेशन पुट कर दिया। सो दैट इज हाउ द पावर्टी लाइन वाज डिफाइंड लेटर ऑन। कमिंग टू ICMR, मैंने कहा 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज, 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। अब एक बेसिक सवाल अभी केशव ने पूछा कि सर 2400 रूरल एरिया से कैलोरी ज्यादा क्यों है, अर्बन का कैलोरी कम क्यों है। इट इज बिकॉज कि यहाँ पर लेबर इंटेंसिव अप्रोच होता है, आपका मैनुअल लेबर ज्यादा होता है नॉर्मल लाइफस्टाइल लिविंग लिव करने के लिए भी। प्रॉब्ली रूरल एरियाज में आपको ट्रैवल आप करोगे तो साइकिल से चलोगे या फिर आप वॉक करोगे। इन अर्बन एरियाज यू हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो आपकी जो कैलोरी बर्निंग होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, कम होती है रूरल एरियाज में। सो अर्बन एरियाज में, सॉरी, रूरल एरियाज में ज्यादा होती है, अर्बन एरियाज में कम होती है। सो दैट इज हाई द कैलोरीज आर 2400 2100 कैलोरीज। लेकिन ये डेटा 1958 का है। अभी जो रिसेंट डेटा आया है, अभी कुछ साल पहले जो डेटा आया है, इन दैट डेटा बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल है। दोनों डेटा जो है ऑलमोस्ट, एक 2155 कैलोरी है, एक 2090 ऐसे कैलोरी है। सो अर्बन एंड रूरल एरिया
का दोनों जो है कन्वर्जन हो गया है, विच मीन्स ये अर्बन का है, ये रूरल का है. सो दैट नंबर हैज चेंज इन रिसेंट टाइम्स. तो आप ये कह सकते हो कि करंट लेवल पे इवन रूरल एरियाज में मैकेनाइजेशन हो गया है, पीपल आर हार्डली यूजिंग बट फिजिकल लेबर फिर भी थोड़ा वहां पे ज्यादा है. नाउ इन कैलोरीज में व्हाट इज द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इन बाइंग दीज थिंग्स, ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसमें कितना पैसा चाहिए होगा, दैट इज हाउ वी डिफाइन द पॉवर्टी लाइन. और बेस्ड ऑन दिस पॉवर्टी लाइन हमने डिफाइन किया 2011 में पॉवर्टी लाइन को 816 पर कैपिटा पर मंथ, यानी 816 पर कैपिटा पर मंथ, यानी पर पर्सन पर मंथ. अगर फैमिली ऑफ 5 है तो इंटू 5 कर देंगे, सो मे बी 4080, तो ये फैमिली ऑफ 5. यानी अगर हम ये कहते हैं कि एक फैमिली की इनकम अगर 4000 से कम है, 4080 से, तो उसको हम बीपीएल मानेंगे, और अदरवाइज वी विल कॉल देम एज एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन. सिमिलरली दैट गोज फॉर अर्बन एरिया. सो अगर यहाँ फैमिली ऑफ 5 है तो 1000 इंटू 5 दैट इज 5000. सो ये जो डेटा है, ये डेटा हमने तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से निकाला है. ठीक है, तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2011-12 में, उसके बेस पर ये डेटा है. सो दैट मीन्स पर कैपिटा मीन पर पर्सन पर मंथ, पर कैपिटा, ये रूरल अर्बन जो है पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन है, जिसको हमने अभी मैंने आपको समझाया. Preeti has a question, sir. Different age group have different calorie requirement. Yes, Preeti, you're right. Different age group का calorie requirement different हो सकता है, but हम average measure करेंगे because फिर then practically calculation will become very difficult. तो हम एक average जो है measure करते हैं instead of calculating कि भी higher age group की कम होगी. Naturally जो young person है, जो growing age में है, उसकी calorie requirement ज्यादा होगी, जो aged है उसकी calorie requirement कम होगी, but हम average जो है हमेशा measure करते हैं. So that is how the poverty इसके बेस पर हमने पॉवर्टी लाइन का बेसिस हमने लिया. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, पहले आगे देखते हैं. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन इज 1.2 1.90, यानी लगभग $2 मान लीजिए, $2 हो गया. यानी अगर इंडिया की करेंसी 75 रुपीज है तो उनके हिसाब से 150 रुपीज हो गया. ठीक है, तो 150 रुपीज उनका जो डेफिनेशन होता है पॉवर्टी लाइन का, थोड़ा ऊपर होता है 150 रुपीज. बट देखिए ना, दोनों में डिफरेंस है. नाउ दिस इज पर कैपिटा पर डे. ठीक है, ये पर कैपिटा पर डे है, और ये एक हम लोग मेथड यूज करते हैं पीपीपी टर्म, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी. क्योंकि हम यहाँ डॉलर में मेजर कर रहे हैं, तो डॉलर और रुपी को कंपेयर करना मुश्किल होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो डॉलर का ले रहे हैं, तो डॉलर मतलब मे बी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंट्रीज के हिसाब से लेते हैं. अब जैसे यूएस में और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया में आपको 50 रुपए में खाना मिल जाएगा, बट द सेम फूड इन यूएसए प्रॉब्ली विल बी इन 150 रुपीज. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट इन यूएसए द एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स. वहां पे हर चीज 3 टाइम्स महंगी है. तो ये जो प्रैक्टिकली उस प्रोसेस में हमने कैलकुलेट किया है, तो अगर हम इंडिया कंपैरिजन देंगे तो ये शायद 1/3 हो जाएगा, नहीं 50 रुपए. तो ये 50 रुपए वाला से जो ज्यादा अर्न कर रहा है एवरेज या एक्सपेंड कर रहा है, विच विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन. पैरिटी का मतलब होता है, पैरिटी मतलब इक्वल. सो हम लोग पीपीपी मॉडल फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. ओके, सो हम लोग अगर डॉलर के, अगर वर्ल्ड बैंक का देखते हैं $2 होता है, तो $2 अगर 150 रुपीज है, बट ये यूएस के कंपैरिजन में देख रहे हैं. बट अगर इंडिया के कंपैरिजन देखेंगे तो इंडिया में हर चीज यूएस में जो सामान मिल रहा है उसका 1/3 मिलेगा, यानी सस्ता मिलेगा. तो दैट इज, उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे और फिर हम इंडिया में निकाल सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. एंड परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ मेथड. जैसे मान लीजिए हमारी इकोनॉमी कितनी है, 3 ट्रिलियन है, बट ये 3 ट्रिलियन कैसे आई? दिस इज जीडीपी ऑफ द इंडिया. बट ये जीडीपी कहां से आया? ये जीडीपी आया मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इंडिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है, इसका टोटल अगर हम लेंगे तो ये जीडीपी आ जाएगा. यानी पूरे इंडिया के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर हम टोटल मॉनेटरी वैल्यू लेंगे, प्राइस लेंगे, तो दैट इज 3 ट्रिलियन. और यूएसए का कितना है? दिस इज इंडिया का है. यूएसए का कितना है? यूएसए का है 20 ट्रिलियन. लेकिन यूएसए का 20 ट्रिलियन है, लेकिन यूएसए में हर चीज, अब अगर आप एवरेज इंडियन यहाँ पे जो 50,000 कमा रहा है, एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50,000 कमाता है, एंड द सेम पर्सन व्हेन ही गोज टू यूएसए, दैट पर्सन इज अर्निंग $3,000. तो प्रैक्टिकली ये 50,000 से एक्चुअली $3,000 कमा रहा है, विच मीन्स अगर 70 का भी एवरेज लेते हैं तो दिस इज 2 लाख रुपीज. यानी क्या उसकी इनकम 4 गुना बढ़ गई है? यस, बढ़ गई है, बट इन यूएस डॉलर्स.
बट इन यूएस एवरीथिंग इज कॉस्टली। वहां पे हर चीज एवरेज जो इनकम है या एवरेज कॉस्ट है, एवरेज सर्विसेज है, सब कुछ 3 गुना 4 गुना महंगी है। सो दैट इज हाउ द इनकम इज। तो वहां के हिसाब से हम इनकम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। बट चूंकि हम इंडियन है तो हर चीज को हम डॉलर में कंपेयर करते हैं। इंडियन जब वहां जाते हैं तो दे गो विद द सेविंग अप्रोच, वो जाके वहां पे सेविंग करते हैं। माय ऑल माय फ्रेंड्स एक्सेप्ट मी, मेरा जो पूरा कॉलेज का इंजीनियरिंग ग्रुप था, एवरीबॉडी इज इधर इन यूएसए और इन यूरोपियन नेशंस और इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो स्टार्टिंग में उन लोगों की टेंडेंसी थी सेव करने की थी, नाउ दे हैव रीच्ड अ लेवल जहां उनकी इनकम काफी अच्छी हो गई है। बट स्टार्टिंग में बिगिनिंग में दे यूज्ड टू सेव। वो उनका ऑफिस एक्स जगह रहता था तो वो 1 घंटा ट्रैवल करके जाते थे। एक अमेरिकन जो होगा वो अपने ऑफिस, वो तो ट्रैवल करेगा बट ट्रैवलिंग कम करेगा। अगर मैं मुझे दिल्ली में काम करना है, मैं ग्रेटर नोएडा या फिर मैं जेवर में जाके रहूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा कम हो जाएगा। बट इफ आई स्टे इन दिल्ली माई कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी हायर बिकॉज दिल्ली में शायद रेंटल ज्यादा होगा। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट में भी हो सकता है थोड़ा सा होगा, बट स्टिल इनकम, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी अगर हम ऐड करें तो दिल्ली में जो है रहना महंगा है इन कंपैरिजन ग्रेटर नोएडा में, या फिर और हायर सबर्ब्स में जाऊंगा, जंगल में जाके रहूंगा तो और सस्ता हो जाएगा। तो पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट सो व्हेन वी कंपेयर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ये कंपैरिजन सही नहीं है बिकॉज ये कंपैरिजन उनके हिसाब से 20 ट्रिलियन है, हमारे हिसाब से 3 ट्रिलियन है। बट वहां पे हर चीज एवरेज 3 गुना महंगी है, विच मीन्स इफेक्टिवली इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन नहीं है, वो 9 ट्रिलियन है। अगर हम कंपेयर करते हैं इन पीपीपी मोड, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। सो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब कि हम लोग दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो दोनों की खरीदने की क्षमता कंपेयर करते हैं। सो परचेजिंग मीन्स खरीदना, पावर पैरिटी यानी परचेजिंग पावर को हम कंपेयर करते हैं दोनों को। सो एवरीथिंग इन यूएस इज 3 टाइम्स कॉस्टलियर। तो हमारी जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन नहीं होना चाहिए, अगर हम यूएस से कंपेयर करें इट शुड बी 9 ट्रिलियन। तो दैट इज हाउ द डिफरेंस इज टेकन। सिमिलरली जब वर्ल्ड बैंक का हम दे रहे हैं तो डॉलर में ले रहे हैं। सो तो हम इसमें भी इसको हम 150 रुपीज अगर होता है तो एक्चुअली हम 3 से डिवाइड कर देंगे विच मीन 50 रुपीज। तो 50 रुपीज उनके परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से होगा। तो आपको जो कभी भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सो दैट इज हाउ वी मेजर द पावर्टी लाइन इन इंडिया। पावर्टी लाइन इंडिया में एनएसएसओ जो है करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है मिनिस्ट्री के अंडर में सारा होता है। इट इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, नॉट ऑन इनकम लेवल्स। एंड वाई वी डोंट वी मेजर ऑन इनकम लेवल्स, बिकॉज हमें इंडिया का एवरेज जो इनकम है वो पता ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, ओनली 3%, नॉट थ्री, हाँ लगभग 4% कह लीजिए, ओनली 4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ओनली 4%, मे बी 6 to 7 6.8 करोड़ ऐसे कुछ तो भी है। इनफैक्ट वो नंबर जो है 4%। तो ये आईटीआर फाइल करता है। बट इसमें जो एक्चुअली जो आईटीआर फाइल करना मतलब कि आप बता रहे हो कि मेरी इनकम इतनी है, यानी बाकी लोगों की इनकम पता ही नहीं है गवर्नमेंट को। बाकी लोग की इनकम गवर्नमेंट एवरेज कैलकुलेट करती है एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, हाँ भी इतना इनकम होगा। तो 4% लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बाकी लोग का तो इनकम है ही नहीं। गवर्नमेंट ये कहती है जिसकी भी 2.5 लाख से कम इनकम है वो आईटीआर फाइल ना करें, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। सो आप ये कह सकते हो दैट ओनली 4% ऑफ पीपल, 4% ऑफ इंडिया पीपल हैव इनकम मोर देन 2.5 लाख। बट बहुत सारे लोग अपनी इनकम दिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। मे बी आपको आप जो है कोई मे बी चाय की दुकान आपने कर रखी हो, बट एवरेज आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, बट गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हो बिकॉज गवर्नमेंट को पता भी नहीं आपकी इनकम है। बट लेटर ऑन जब आपकी मजबूरी हो जाती है कि यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट, देन प्रॉब्ली आप बताओगे। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट द एवरेज इनकम इंडिया में निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो हम लोग एक सैंपल से ही निकालते हैं, एंड दैट इज वाई यूज द कंजम्पशन मॉडल। और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पुअर लोग हैं उनका कंजम्पशन, उनका एक्सपेंडिचर, उनकी इनकम और उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होगी। सो अगर उनका एक्सपेंडिचर इज अबव पावर्टी लाइन तो वो एपीएल होंगे, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिलो पावर्टी लाइन तो हम इनको बीपीएल मानेंगे। सो पावर्टी इज मेजर्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अ पुअर हाउसहोल्ड इज डिफाइंड एज वन विद एन एक्सपेंडिचर बिलो स्पेसिफिक पावर्टी लाइन। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेड काउंट रेशियो एचसीआर जो है, हेड काउंट रेशियो मतलब नंबर निकालते हैं, कितने लोग पुअर है कितने लोग पुअर नहीं है। एज आई डिस्कस्ड, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा जब पावर्टी वाली क्लासेस, जब हम लोग क्लास 11th की मैं क्लास लूंगा। 11th की जब क्लास लूंगा तो मैं 11th की एनसीईआरटी के साथ साथ मैं और एक दो लेवल ऊपर जाऊंगा, वेयर आई विल डिस्कस दीज कमिटीज इंफॉर्मेशन इन डिटेल एज वेल। तो अलग कमेटी 1979 में पहली बार उन्होंने कहा, और ये उन्होंने दे यूज द डेटा ऑफ आईसीएमआर। लेटर ऑन लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, इन्होंने मल्टीपल अपने अपने मेथड्स दिए।
इन सारे मेथड्स में ये था कि जो पावर्टी लाइन को मेजर करने का जो मेथोडोलॉजी यूज होता था वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। और पहले हम लोग सिर्फ कैलोरी की बात करते थे, अब हमारा जो मेथड है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। हम सिर्फ कैलोरी की बात नहीं करते हैं, वी मेजर, हम कैलोरी की भी बात करते हैं, बट हम उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि फूड है, फूड के अलावा नॉन फूड है क्या, फूड में क्या हम फैट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, ये सारा हम लोग मेजर करते हैं। पहले हम लोग सिर्फ कैलोरी देखते थे, बट अब हम लोग क्वालिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, आपका जो है हाउस होल्ड आइटम्स, आपके घर में टीवी है, आपके में ये है वो है, बहुत सारी चीजें हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो रंगराजन कमेटी जो लास्ट में आई थी, 2014 में आई थी, एज पर दैट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो पावर्टी लाइन था दैट वाज 1407 इन अर्बन एरियाज एंड 972 इन रूरल एरियाज। लेकिन रंगराजन कमेटी ने पावर्टी लाइन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं दिया, तो उन्होंने फैमिली ऑफ 5 की बात की थी। सो द नंबर ही गेव वाज 1407 इंटू 5। ठीक है, सो 1407 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 3570। ठीक है, रूरल एरियाज में हो गया 972 इंटू 5 विच इज 4805 आई थिंक। ओके, नो व्हाट यू, यानी रूरल एरिया में जो भी 4800 रुपीज से ज्यादा कमा रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, वो एपीएल है। एंड somebody who is earning less than 4805 will be below poverty line, but we are talking about family of 5। ठीक है, अगर वो फैमिली ऑफ 4 होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। देन इन अर्बन एरियाज इट इज 7035, यानी एक इंडिविजुअल 10,000 कमा रहा है तो बीपीएल कैटेगरी में वो नहीं आएगा। सो दैट इज हाउ वी मेजर द पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया बाय डिफरेंट मेथड्स। अगर आप यहाँ देखोगे पॉवर्टी रेशियो, यानी आउट ऑफ 100 अगर है तो कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, एंड द नंबर्स, इसको हम लोग हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, यानी एग्जैक्ट नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि 1993 में हमारा पॉवर्टी लाइन कितना था? पॉवर्टी लाइन 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, ये यानी ये लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। द नंबर चेंज 37, देन 30 एंड देन 22। नाउ दिस इज एज पर इकोनॉमिक सर्वे 1718, और ये मेथोलॉजी है तेंदुलकर मेथोलॉजी, दैट इज तेंदुलकर कमेटी की मेथोलॉजी थी। हर मेथोलॉजी अलग अलग है। इनफैक्ट जो रंगाराजन कमेटी का मेथोलॉजी है, ये नंबर जो है जो 22% है उनके में 29.8% था। ठीक है, बिकॉज जो रंगाराजन कमेटी का मेथोलॉजी है वो काफी और डिटेल में है, वो और भी चीजें वो मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन सी हियर, यानी 1993 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन, अगर हम देखते हैं तो इसमें नंबर कुछ गड़बड़ है। यस, 42% अगर हम बात करते हैं तो 42% जो है बिलो पावर्टी लाइन था, 26% अब जो है वो अर्बन एरिया में बिलो पावर्टी लाइन था, टोटल 37% था, और वो 22% हो गया। मतलब कहने का मतलब कि 6 इयर्स में जो हमारी पावर्टी लाइन है वो काफी इंप्रूव हुई, 15%। Now coming to the number of poor, 404 million and 270 million। यहाँ पर अगर हम नंबर देखते हैं तो 40 करोड़ पॉपुलेशन जो बिलो पावर्टी लाइन थी, दैट इज टुडे 27 करोड़। आप बोलो 27 करोड़ बिलो पावर्टी लाइन, अगर हम इस डेटा को भी मानते हैं तो 27 करोड़ पीपल आर बिलो पावर्टी लाइन। डोंट यू थिंक दैट दिस इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर? अगर हम वो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के 4, 5, 7, 10 कंट्रीज की पॉपुलेशन जोड़ लें तो भी 27 करोड़ नहीं होगी, और इतने हमारे यहाँ सिर्फ पुअर है। सो आउट ऑफ 130 करोड़ पॉपुलेशन वी कैन सेफली अज्यूम दैट at least 30 crore population is below poverty line। So this is a very huge question mark on our abilities, हमारी abilities, हमारा poverty elevation measures, हमारे unemployment या employment generation possibilities। So अपने आप में बहुत बड़ा question mark है। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो because you want to get into government services, और सबसे जो prime objective होगा जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, that will be addressing the welfare schemes, ensuring कि welfare पे काम किया जाए, and poverty elevation will be one of the biggest objective। तो ये जो है एस्टिमेट्स ऑफ पावर्टी हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू पावर्टी, पावर्टी में देयर आर सर्टेन वल्नरेबल ग्रुप जो विच आर मोर पुअर देन अदर्स। ओके, सो एकता हैज अ क्वेश्चन, हाउ टू चूज व्हिच मेथोडोलॉजी इज बेस्ट। एकता, कोई मेथोडोलॉजी ऐसा बेस्ट जैसा तो नहीं है। ओनली थिंग इज दैट इट इज बिलीव दैट जो मेथोडोलॉजी जितनी जितनी इंक्लूसिव होगी, जितना अच्छे से हम, बिकॉज जो डेफिनेशन ऑफ पावर्टी है वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन मे बी न्यू पैरामीटर्स आर बीइंग एडेड। तो जैसे रंगाराजन कमेटी के हिसाब से जो डेटा है वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। वर्ल्ड बैंक का पावर्टी का डेटा जो है वो और भी जो मेथोडोलॉजी वो और भी कॉम्प्रहेंसिव है। सो नो मेथोडोलॉजी इज बेस्ट, इट इज फॉर गवर्नमेंट टू चूज कि वो कैसे चूज करते हैं। मोस्टली जो गवर्नमेंट अभी ले रही है वो तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी को स्टडी करती है। सो देयर इज नो बेस्ट मेथोडोलॉजी, बिकॉज इसमें भी क्या है, इसमें बड़ी सब्जेक्टिविटी है। बिकॉज हम ये नहीं, आप
कोई चीज 4 तरीके से मेजर कर रहे हो, तो आप कह दोगे हाँ ये बेटर है। गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू शो कि पॉवर्टी कम हो रही है, बिकॉज दैट इज देयर मेन, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देयर इज एक्सेप्टेड व्यू दैट तेंदुलकर कमेटी को वो यूज कर रहे हैं। बट तेंदुलकर कमेटी का जब डेटा आया था, जब 22% पॉपुलेशन वाला पॉवर्टी, 22% वाला जब डेटा आया था, जिसमें ये कहा गया कि 22% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट वाज क्रिटिसाइज्ड। जो हमारे क्रिटिक्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका ये कहना है कि इंडिया में आज भी 30% पॉवर्टी, 30% से कम पॉवर्टी नहीं है। इनफैक्ट जो रीसेंट, सबसे रीसेंट जो लास्ट ईयर आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसके हिसाब से इंडिया की पॉवर्टी जो है वो 2004 5 से 2014-15, इस पीरियड में पॉवर्टी पहले 55% से 56% से लगभग 28% हो गई है। तो आप इस मेथोलॉजी को यूज करोगे तो एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये एक और नई मेथोलॉजी है। सो देयर इज नो बेस्ट मेथड, ओनली थिंग दैट गवर्नमेंट कौन सा मेथड चूज करती है। यूजुअली गवर्नमेंट को जब ये दिखाना होता है कि चीजें अच्छी हो रही हैं, तो वो मेथोलॉजी यूज करते हैं जिनसे उनको ये देखने को मिलता है कि भाई गवर्नमेंट का काम अच्छा हो रहा है। सो वल्नरेबल ग्रुप्स पे आते हैं, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स, proportion of BPL people varies across social and economic categories। तो हम लोग दो तरह की कैटेगरीज डिफाइन करेंगे, सोशल कैटेगरीज एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। SC ST क्या है? इट इज अ बेसिकली अ सोशल कैटेगरी, बिकॉज ये डेफिनेशन सोसाइटल है। इंडिया में पॉवर्टी 22% है एज पर तेलुगु कमेटी, बट SC पॉपुलेशन 29% है और ST इज 43%। यानी अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली SC और ST पॉपुलेशन में काम करे, विच मींस इंडिया की पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो इकोनॉमिक कैटेगरी है, इनकम। इकोनॉमिक कैटेगरी मतलब इनकम के बेसिस, द बेसिस इज इनकम। सो हियर वी हैव टू काइंड ऑफ पीपल, एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड जो 34% बिलो पॉवर्टी लाइन है, और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, जैसे आप शहरों में देखते हो जो लोग काम ढूंढते हैं डेली, आप चौराहे पे या कहीं देखोगे सुबह सुबह जो है लेबर बैठे होते हैं और वेट करते हैं कोई आएगा और उनको लेके जाएगा। सो दोस कम इन द कैटेगरी ऑफ अर्बन कैजुअल लेबर। एग्रीकल्चरल लेबर जो मोस्टली लैंडलेस होते हैं वो एग्रीकल्चरल लेबर कैटेगरी में, रूरल एरियाज में आते हैं। सो ये नंबर भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, लिटिल मोर देन 1/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, हम ये कह सकते हैं कि जो है पॉवर्टी जो है कम है। एक्सेप्ट ST households, all three groups have seen decline in poverty in 1990s। तो ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के देखा जाए तो बाकी तीन ग्रुप में, दैट इज SCs, एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, इनकी पॉवर्टी जो है वो कम हुई है। ओके, सो विद इन सोशल ग्रुप्स ST पॉपुलेशन की पॉवर्टी कम नहीं हुई है, बस SC पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल की जो है जो पॉवर्टी है वो कम हुई है। अच्छा, अब हम सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं, SC पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो SC पॉपुलेशन के अंदर क्या है भाई? SC पॉपुलेशन में भी चिल्ड्रन है, मेन है, वुमेन है, इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं। तो इट इज सीन दैट विद इन द फैमिली ऑल्सो प्रॉब्लम है एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज का। अगर मान लीजिए एक फैमिली है और उनके घर में 1 लीटर दूध आता है, ठीक है, सिर्फ 1 लीटर दूध आता है, और यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, मे बी जो शायद अब काम नहीं कर पाते हैं। देन देर इज 3 बहनें हैं, 3 daughters आर देयर, ठीक है। देन देर इज अ मेल मेंबर, अर्निंग मेंबर है, बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड एज है, उनकी वाइफ भी है, दैट इज ओल्ड वुमेन ऑल्सो, मे बी मदर ऑफ दिस मेल चाइल्ड एंड मदर एंड फादर ऑफ मेल चाइल्ड। देन एक सन है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द लेडी, मे बी जो वुमेन हु इज द वाइफ ऑफ दिस मेल पर्सन। तो इस तरीके से है। तो आप देखोगे इसमें ये 1 लीटर दूध में किसको 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 मिलेगा? नेचुरली सबसे इस 1 ईयर के बच्चे को, या एक बच्चा जो सन है उसको मिलेगा, ये जो मेल वर्क कर रहा है उसको मिलेगा। बाकी लोगों को एक्सेस कम रहेगा या नहीं के बराबर मिलेगा। वाई? बिकॉज इट इज ट्रीटेड दैट ये मेल पर्सन है, ही इज द अर्निंग पर्सन, सो ही विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली। सेकेंडली, बच्चा, चूंकि हमारा जो सोसाइटी है, इट इज सोसाइटी विच इज हाईली, यू कैन से इट इज मेन डोमिनेट सोसाइटी। तो मेन डोमिनेट सोसाइटी में देर इज एक्सेस ऑफ, और चूंकि स्त्री को परायाधन बोला जाता है, देर इज अ कल्चरल रीजन ऑल्सो कि आप यू वांट सन इन द फैमिली। सो ये सब फैक्टर्स से देर इज मोर प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू द चाइल्ड और मेल चाइल्ड इन द फैमिली। तो इसको एक्सेस रहेगा। तो हमें ये देखने को मिलता है कि विद इन सोशल ग्रुप्स जो है, in some cases women, elderly people and female infants are denied equal access of resources available to the family। शायद ये रिलेटिवली हायर इनकम ग्रुप में कम होता है, नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो पॉवर्टी एज इज अ बिग चैलेंज दैट वी आर स्टिल फेसिंग, और दिस इज वेयर वी हैव टू वर्क।
आप ये देखिए यहाँ पे इंडिया की पॉवर्टी 22% है, SC 29%, ST 43%, और ये कैजुअल रूरल फार्म ये 34% है। सो अगर हम इन पे डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली इन दोनों पे काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी कम हो जाएगा। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, they focus on the most vulnerable groups. There are a lot of schemes which are directed only towards ST. हमारे यहाँ एक नेशनल ट्राइबल फंड होता है जिसपे हम काम करते हैं। नेशनल ट्राइबल नेशनल SC ST जो है ग्रुप्स है, एडवाइजरी ग्रुप्स हैं जो कि डेवलपमेंट पे या गवर्नमेंट स्कीम्स कैसी होनी चाहिए उस पर काम करते हैं। सो वी स्पेसिफिकली वी हैव फंड फॉर SC ST which are mainly directed towards improving the the level of income, the education, the health, the skilling, the nutrition, उस पर डायरेक्टली काम होता है। बिकॉज वी नो कि अगर हम SC ST पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएंगी। सो दैट इज द पावर अबाउट द वल्नरेबल ग्रुप्स। Now coming to the disparities, जब हम लोग पॉवर्टी लाइन मेजर करते हैं तो इंडिया में भी पॉवर्टी लाइन अक्रॉस इंडिया इज वेरिंग, कहीं पॉवर्टी ज्यादा है, कहीं पॉवर्टी कम है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1970 से, तो स्टेट पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइन बट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का पॉवर्टी लाइन 21% या 22% है, बट MP, असम, बिहार, उड़ीसा आर अबव नेशनल एवरेज, यानी यहाँ की पॉवर्टी ज्यादा है। बिहार 33%, उड़ीसा 32.6%। ऑन द कॉन्ट्री महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पॉवर्टी रिलेटिवली कम है। सो देर इज अ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऑल्सो। तो हम लोग जब पॉवर्टी जब मेजर करते हैं तो हम ऑल इंडिया पॉवर्टी मेजर करते हैं। पहली बार ये जो मेजरमेंट हुआ था वो 1993 में हुआ था, जहां पे हमने नेशनल पॉवर्टी भी निकाला था और इंटर स्टेट पॉवर्टी या स्टेट वाइज हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की कोशिश करने की, स्टेट वाइज हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने की कोशिश करी। इनफैक्ट अब ये एक लेवल और आगे बढ़ गया, नाउ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए हैं, जहां पर अगर आपको याद, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्कीम स्टार्ट किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो 115 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, मान लीजिए लगभग 650 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, तो ऐसे 115 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो नेशनल एवरेज है उससे काफी कम है। तो इन पर गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है। सो देयर इज अ डायरेक्टेड अप्रोच टुवर्ड्स द एरियाज और पीपल। तो हम लोग पॉपुलेशन पे भी काम करते हैं, जो सेगमेंटेड पॉपुलेशन है, जिन जो वल्नरेबल है। एट द सेम टाइम वी आल्सो आइडेंटिफाई द द पॉकेट्स ऑफ इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी बिहार में आपको मैक्सिमम जो है नीति आयोग के डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ केरला। अब देखिए केरला का जो कोविड कोविड पूरा जो मेजर है, जो 19 कोविड-19 में जो केरला का रिस्पॉन्स है, आप देखिए कितना अच्छा है, बिकॉज केरला हैज वेरी गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यूपी में आओगे तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा, डॉक्टर ही नहीं मिलेगा। सो दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि हाउ द स्टेट्स हैव डन रिलेटिवली एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो सवाल ये उठता है कि कुछ स्टेट्स में अच्छा क्यों, कुछ स्टेट में खराब क्यों है। पंजाब, हरियाणा, व्हाई आर दे एबल टू डू दैट? बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ पर हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ आई। तो जब एवरेज इनकम बढ़ेगी या ग्रोथ जब ज्यादा होगा एक सर्टेन एरिया का, तो एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिट, सो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम हो गई। अगर आपको लैंड रिफॉर्म्स में पढ़ा होगा या पढ़ाया मैंने, पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो लैंड रिफॉर्म्स वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ था, ऑपरेशन बरगा था। एंड दिस प्रोग्राम यूजुअली हैपेंड 1977 के बाद जो है हुआ था, जब वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी। और लैंड रिफॉर्म में क्या किया उन्होंने, रिच से लैंड लेके गरीबों को बांट दिया। एंड व्हेन इट वाज डन ऑटोमेटिकली पॉवर्टी केम डाउन, बिकॉज एवरी इवन द पुअर पर्सन जो पहले पुअर था उस पर जब लैंड आ गया तो लैंड के यूज से दे वर एबल टू रिड्यूस देयर पॉवर्टी लेवल्स, और दे वर एबल टू इंप्रूव द इनकम लेवल, वो अपनी इनकम को बढ़ा पाए। केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट आया, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। तो एजुकेशन हेल्थ पे उन्होंने अच्छा काम किया। अब एजुकेशन अच्छी होगी और हेल्थ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बढ़ जाएगी। एजुकेशन हेल्दी हो गए तो यू कैन वर्क। आप जैसे मान लो आप हेल्दी नहीं हो, हेल्दी हो, तो हेल्दी हो तो ठीक है आप अच्छे से काम करो। अगर हेल्दी नहीं भी हो, बीमारी पड़ते हो, तो स्टेट का आपको, गवर्नमेंट से अच्छा आपको हेल्थ केयर मिल जाता है, तो आपकी इनकम आपकी जो इनकम हेल्थ केयर में जो जाती है एक्सपेंडिचर में, वो शायद बच जाएगी। सो यू विल बी रिलेटिवली बेटर इफ यू आर मोर एजुकेटेड, यू विल बी स्किलिंग। इनफैक्ट केरला को हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, वी कॉल द मनी ऑर्डर इकोनॉमी, क्योंकि केरला का ऑलमोस्ट 20-25% पॉपुलेशन वो गल्फ चला जाता है, वो गल्फ में रहता है। सो दे आर एबल टू सेंड मनी फ्रॉम देयर, सो दे ऑल्सो गेट इन, बट दे हैव इन्वेस्टेड हेविली ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट, और वो बेनिफिट उनको देखने को मिलता है।
आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम, जो राशन सिस्टम है, वो काफी इफेक्टिव है, एंड दैट इज वाई पॉवर्टी इज लेस. कमिंग टू द नॉर्दर्न स्टेट्स, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लोग भी पहले से अच्छा कर रहे हैं, बट इफ यू कंपेयर द नेशनल एवरेज, दे स्टिल हैव टू डू लॉट बेटर. अगर आप देख सकते हैं एवरेज, दिस इज ऑल इंडिया 21.9. आप देखिए बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, यूपी, तो ये नेशनल एवरेज से ज्यादा है. और तो ये पूरे इंडिया की पॉवर्टी, और ये बाकी सारे नेशनल एवरेज से कम है. आप देखिए कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इसमें गुजरात, so you can see Kerala the level of poverty, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ये आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है. सो दीज आर 5 स्टेट्स. अगर बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम अगर एड्रेस हो गई, तो इंडिया का आधा प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा, मुझे लगता है. ओके, सो दैट इज वेयर वी आर सपोज टू वर्क. इवन राजस्थान हैज अ लोअर पॉवर्टी लेवल. ठीक है, तो हमें इन स्टेट्स पर ज्यादा हमें काम करना है. एंड गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का या इवन स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है. दे आर एबल टू डू बेटर. दिस इज एज पर 2011 सेंसस. लेकिन अब पावर्टी जो मुझे लगता है वो 21.9 जो है वो से काफी कम होगी, या 22% से कम होगी. मे बी कहीं कहीं अभी कई रिपोर्ट्स में आ रहा था कि मे बी वो नंबर 10%, 12% के होगा. बट अगेन ये जो कोविड क्राइसिस अगर होगा, तो इससे पावर्टी लेवल्स फिर बढ़ जाएंगे. बिकॉज बहुत सारे लोग जो है से इंडिया की पावर्टी लाइन ये है पीएल. तो एक बहुत सारा पॉपुलेशन यहाँ पे है जो बेयरली जो है पुअर नहीं है. उसकी इनकम 5,000 है, आपने पावर्टी लाइन कहा 4800, तो आपके हिसाब से पावर्टी लाइन में नहीं है, बट उसकी नौकरी जाएगी तो सडनली नीचे चला आएगा. ओके, सो दैट इज वेयर, सो ह्यूज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज जस्ट अबव द पावर्टी लाइन. तो वी हैव टू इंश्योर कि ये पावर्टी लाइन से अबव नहीं, काफी ऊपर चले जाए, सो दैट इवन इन वर्स्ट सिचुएशन जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाए. सो दैट इज वेयर वी वर्क. नाउ कंपेयरिंग टू द ग्लोबल लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, तो इफ यू ट्राई टू कंपेयर अ ग्लोबल लेवल, तो 1990s में वर्ल्ड पॉवर्टी वाज 35%, व्हिच केम डाउन टू 11% इन 2013. ठीक है, उसकी और बात करते हैं. पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो इन कंट्रीज ने अपने, चाइना या साउथ एशियन इकोनॉमीज हो गए आपके, ये सारे इंडिया वाले जो कंट्रीज हैं, ये इनकी पॉवर्टी जो है काफी कम हुई. चाइना का एग्जाम्पल अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है. चाइना में जो बीपीएल पॉपुलेशन था, आप देखिए, ये देखिए ये नंबर, यू विल बी सरप्राइज. 1981 में 88.3% चाइनीज वर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी सिर्फ मात्र 11.7% पीपल ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन वाज अबव पॉवर्टी लाइन. इस वक्त इंडिया की पॉवर्टी लाइन अराउंड 50% रही होगी. ठीक है, एंड इट केम डाउन टू 14.7 एंड ऑलमोस्ट 2% ऑन 13, जो मुझे लगता है अब शायद ना के बराबर होगी. So you can see the level of why, because China was able to do well. चाइना ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया. चाइना became the manufacturing hub of the world, and that is how they were able to. So Kritika has a question. Does socio-cultural factors also matter in poverty? Yes, Kritika, we'll come to that. अभी आएंगे उस पे. Okay. In South Asia, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, decline has been rapid. यहाँ इनका एवरेज 15% हो गया. अब यहाँ पे देखो, नाइजीरिया में 53.5%, इंडिया इज 21.2%, बांग्लादेश 14.8%. आप देखो ना, बांग्लादेश की एवरेज इनकम इंडिया से कम है, बट वहां पॉवर्टी लोग कम है. पाकिस्तान 4%, चाइना 0.7%. ये डेटा देखो, ये 13 का था, ये तो लेस देन 1% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. ब्राजील 3.4, इंडोनेशिया. यानी कहने का मतलब ये है कि वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अगर हम 2011 की डेटा के हिसाब से पॉवर्टी मेजर करते हैं, तो इंडिया को भी बहुत दूर सफर तय करनी है. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आज जो हमारा पॉवर्टी लाइन है, अगर हम कोविड क्राइसिस से पहले की बात करते हैं, तो अगर हमारी पॉवर्टी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो आई थिंक वी आर लेस देन 10% से हम नीचे चले गए हैं. यू कैन सी हियर चाइना कितना अच्छा किया. ये देखो, चाइना हैज एबल टू डिक्लाइन द पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज कैसे कम हुआ है. ये साउथ एशियन है, साउथ एशियन इकोनॉमीज ये है. सो वी कम अंडर द साउथ एशियन इकोनॉमीज. ठीक है, सो ये सारा आप अगर एनसीईआरटी का चैप्टर 3 चैप्टर 3 पढ़ोगे, तो उसमें सारा आपको मिलेगा. Now coming to the causes of poverty. Now क्या cause है? पहला तो रीजन है हिस्टोरिकल रीजन. ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया, वाज ऑलमोस्ट 200 ईयर ऑफ कॉलोनियल रूल. वी वर एक्सप्लॉइटेड, रिसोर्सेज ड्रेन हुए हमारे इंडिया से. सो दैट वाज अ बिग रीजन हिस्टोरिकली जो है पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा क्या था कि 1950 के बाद जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के जब इंडिपेंडेंस हुआ,
तो 1950 से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी कम थी। प्री प्री इंडिपेंडेंस फेज में तो प्रॉब्लम थी, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस फेज आल्सो द इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वेरी लेस, 3.5%। तो ये भी अपने आप में कम थी। आज हमारी ग्रोथ 6% 7% के अराउंड हॉवर करती है, बट अराउंड दैट टाइम द इनकम, अच्छा आप मान लीजिए कि पूरा पॉपुलेशन एक पूरा एक बड़ा फैमिली है, इंडिया एक बहुत बड़ी फैमिली है। सो अगर एवरेज इंडिया की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ या इनकम ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एवरेज इंडिया की इनकम बढ़ रही है, एंड दैट विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली, लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी। सो इफ द एवरेज इनकम इज ग्रोइंग लेस, सो नेचुरली पॉवर्टी जो एलिवेशन होगा या पॉवर्टी इंप्रूवमेंट होगा वो भी कम होगा। द सेकंड इज लो इकोनॉमिक ग्रोथ, एज आई डिस्कस, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये इसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, 3.5% in during this period. This was given by economist Raj Krishna. ठीक है, there is nothing Hindu about it. He just named the term because he found that India is the only country in South Asia, Southeast Asia, जहां पर पॉपुलेशन, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी कम थी। ठीक है, हाई पॉपुलेशन, वी ऑल नो हाई पॉपुलेशन हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद पॉवर्टी। इंडिया की 36 करोड़ पॉपुलेशन थी 1951 में, एंड टुडे वी आर मे बी 136 करोड़ 19 2020। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स, हमने कहा ना, लैंड रिफॉर्म हो गया, लैंड रिसोर्सेज हो गया, पुअर पर्सन लैंडलेस, के पास कोई एसेट नहीं है। आप एजुकेटेड हो, अगर आपके पास एसेट नहीं भी है तो आप एजुकेटेड हो, एंड हेंस यू विल बी एबल टू फाइंड सम वर्क फॉर योरसेल्फ। सो इनकम जनरेटिंग एसेट होना बहुत जरूरी है। एसेट कैन बी द फिजिकल एसेट, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, मशीनरी हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, वेल्थ हो गया, या फिर नॉन अनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, जैसे एजुकेटेड हो गए, स्किल्ड हो गए। सो ये सब इनटेंजिबल एसेट है। जान है तो जहान है, तो दैट इज इनटेंजिबल। ओके, सो इनकम जनरेटिंग एसेट्स होना बहुत जरूरी है, एंड दैट वाज इक्वली अनइक्वली डिवाइडेड इन द कंट्री। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, 1951 से 50 से हमने लैंड रिफॉर्म किया, बट हमने कहा कि जो सरप्लस लैंड है हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन में, बट इंप्लीमेंटेशन वाज वीक। गवर्नमेंट स्टार्टेड विद लॉट ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर। 1952 में पहली बार कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी स्टार्ट किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सैकड़ों गवर्नमेंट स्कीम्स या एंटी पॉवर्टी स्कीम्स आई हैं, बट दे हैव नॉट बीन इफेक्टिव एज दे शुड बी। ओके, देन कमिंग टू सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, पुअर स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी ऑन दीज। अब आके रूरल एरिया की हम बात करते हैं। मान लो रूरल एरिया में 100 फैमिलीज हैं, आउट ऑफ विच देर आर सम 20-30% फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनकी इनकम, एवरेज इनकम कम है, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बाकी 70% रिलेटिवली ओके। बट क्या होता है, कोई रिलीजियस रिचुअल होगा या सोशियो कल्चरल रिचुअल्स होंगे, सो यहाँ पे पुअर ज्यादा खर्च करते हैं, या पुअर रिच को मैच करने की कोशिश करते हैं। मैच नहीं भी करेंगे, सो दे विल बी, दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग मोर देन देयर कैपेसिटी। व्हाई? बिकॉज उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल, एक सोसाइटल प्रेशर होता है। पूजा करेगा तो, गरीब आदमी पूजा करेगा तो वो भी जो है मंदिर में जाके, भले वो इनकम नहीं कमा रहा है, 50 रुपए या 10 रुपए डालने की कोशिश करेगा, इवन दो द इनकम इज नॉट देयर। सो सोशियो कल्चरल रिलीजियस फैक्टर्स आल्सो इंपॉर्टेंट। शादी हो रही है गांव में, आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज कम है, फिर भी आप यू विल टेक लोन। आपको ये नहीं पता है कल को हम पैसा वापस कैसे करेंगे, यू डोंट नो, बट बिकॉज यू नो एक सोशल प्रेस्टीज जुड़ जाती है, और बिकॉज आपको लगता है कि कुछ भी करना होगा, इवन इन डेट आप जो है अपने बच्चे की या बेटी की शादी करोगे, एंड you might live in debt for the next 1 decade for that, but you're ready for that. So the poverty also happens because of socio-cultural religious factors in rural areas. अब आपके रिचुअल्स होते हैं रिलीजियस, दे आर कॉस्टली रिचुअल्स, आप पंडित को दे रहे हो, आप पूजे की पूरी व्यवस्था कर रहे हो। अ वेरी गुड एग्जांपल इज, हमारे बिहार में छठ पूजा होती है। छठ पूजा इज अ वेरी कॉस्टली पूजा। छठ पूजा में एवरेज जो कॉस्ट होता है छठ पूजा में, पर पर्सन जो पूजा, जो भी जो पूजा उठा रहा है, उसमें एवरेज इज नॉट लेस देन 3-4 थाउजेंड रुपीज, यानी आपको मिनिमम इतना खर्चा करना पड़ेगा। अब पुअर पर्सन, मान लीजिए कोई अगर 7,000 कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने 7,000 का पैसा ये छठ पूजा में खर्च कर देगा। मे बी लेट्स से नहीं 3,000 2,500 है, बट सोचिए, बिकॉज यू वांट टू फॉलो और यू वांट टू डू व्हाट सोसाइटी इज डूइंग, या सोसाइटी आपको फोर्स कर रही है, या फिर आपको लगता है कि मे बी दैट पूजा विल हेल्प मी, विल बी एबल टू improve my situation. So socio cultural and religious factors play a very important role. Next is high level of indebtedness due to health expenditures and capital inputs in agriculture. अब हमारे यहाँ जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ मूव किए, सो हियर व्हाट हैपेंड दैट द एवरेज, द कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड। हम मैकेनाइज्ड इन एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड,
एंड फॉर दैट यू नीड मनी। आपको हाइब्रिड वैरायटी सीड्स चाहिए तो महंगा मिलेगा। और इससे क्या होता है, आपका जो यू आर ऑलवेज इन डेट, बिकॉज आपके पास सरप्लस नहीं है, इनकम नहीं है, तो आप डेट में चले जाते हो, एंड दैट कॉजेज विशियस साइकिल ऑफ डेट। सो वंस इन डेट ऑलवेज इन डेट। एक किसान, एक एवरेज किसान जो पुअर किसान है, वो कभी कर्जे से बाहर निकल नहीं पाता है, एंड दैट इज ऑल्सो विशियस साइकिल। सो दीज हैव बीन द रीजन ऑफ द हाई द पॉवर्टी चैलेंज इन इंडिया। अब कमिंग टू द अदर थिंग कि एंटी पॉवर्टी मेजर क्या होंगे। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ। आप अपनी कंट्री की इनकम बढ़ाइए। इकोनॉमिक ग्रोथ द कंट्री दैट इंश्योर योर इनकम इंक्रीजेस। और यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ शुड बी मोर फोकस्ड। एग्रीकल्चर ग्रोथ जितना ज्यादा रहेगी, उतना पॉवर्टी आप बेटर तरह से एड्रेस कर पाओगे। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी हमारे साथ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसपे हम पॉवर्टी पर हम डायरेक्टली फोकस करते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होता है, मान लीजिए 7% ग्रोथ होता है, तो अगर हमारा 7% ग्रोथ होगा तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी, बिकॉज जितना भी ग्रोथ होगा उतना आपके टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे, उतना आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे। सो गवर्नमेंट विल बी एबल टू ऑगमेंट द रेवेन्यूज। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज होंगे वो ऑगमेंट होंगे, एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट विल बी एबल टू एड्रेस द वेलफेयर पार्ट। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉवर्टी एलिवेशन हो या फिर कुछ भी हो, वो सब गवर्नमेंट की होती है। ये अलग बात है कि प्राइवेट सेक्टर भी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है। देयर आर एनजीओ, सिविल सोसाइटी, वो भी काम करते हैं, बट प्राइमरली इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द मेजर प्लेयर इन पॉवर्टी एलिवेशन और रिडक्शन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो एक इनकम ग्रोथ जब कंट्री का होगा तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है वो। देन मनरेगा जैसे हो गया, वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको देखा होगा अभी जो इसमें आएगा, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि मनरेगा में हम जो है बढ़ा के पैसे देंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आज इसका नाम है, अब है डीडीयू एनआरएलएम, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंप्रूवमेंट पे काम करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। अंत्योदय अन्न योजना, ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर कैटेगरी में आता है, इनको जो है हम लोग हेल्प करते हैं। सो दीज आर एंटी पॉवर्टी स्कीम्स। इसके अलावा भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल यू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यू फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ पे काम करना, यू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करो। एंड दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मनरेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हाई स्किल्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, उस पर आप काम करिए। आप पॉपुलेशन को स्किल करिए, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन विल बी स्किल एंड दे विल गेट गुड जॉब्स। सो दैट इज हाउ द एंटी पॉवर्टी मेजर्स आर इम्पोर्टेंट। ये एंड एज आई मेंशन कि एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स हैं उसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, द फोकस शुड बी ऑन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। करंटली देयर आर इश्यूज लाइक ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, बेनिफिट्स नॉट इंक्लूसिव। सो एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चला रही है, जैसे कौशल विकास योजना है। सो इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग स्किल प्रोवाइड कर रही है। जनधन योजना है, आपके अकाउंट, जनधन अकाउंट, देयर आर मोर देन 33 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैव बीन ओपन, 33 करोड़। अब ये जो अकाउंट खुल गए हैं, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर सब्सिडी, पेंशन, इंश्योरेंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन। तो हम लोग अनबैंक, अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो भी क्राइसिस चल रहा है इसमें गवर्नमेंट ने लगभग 40,000 करोड़ रुपीज ट्रांसफर किए हैं पुअर के अकाउंट में, अभी पिछले 20 दिनों में। और डायरेक्टली ये सारे जनधन अकाउंट में गए हैं। आपके जो है डीबीटी, अभी पीएम किसान योजना आई थी जहां पे फार्मर्स के अकाउंट में जो है 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। सो ऑल दीज आर द वेज इन विच यू कैन एड्रेस, वो जनधन अकाउंट के थ्रू पॉसिबल है। ओके, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी रिलीज हुई है, जस्ट 7-8 months बिलो। इट सेड दैट India UN has been able to move 271 million people out of the poverty between 5-6 and 15-16। एक डेकेड में हमने लगभग 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला है। एंड पॉवर्टी रेट इन द कंट्री हैज डिक्लाइंड, हैज हाफ फ्रॉम 55 to 28% इन 10 year पीरियड। ओके, सो दैट इज, और यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है दैट इज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को इंप्रूव किया है। एंड सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी क्या है इसमें? आधार, आधार बेस्ड जैम, जनधन आधार मोबाइल। तो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है, तो आधार लिंक जो बैंक अकाउंट है उससे क्या हो गया, हमारा डीबीटी जिसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, वो काफी इफेक्टिव हो गया। ठीक है, सो दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। बट वी नीड टू इंश्योर कि और कैसे जॉब जनरेट हो, और कैसे एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, कैसे बेटर क्वालिटी ऑफ जॉब मिले, कैसे जो ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, उनकी लाइफ कैसे इंप्रूव हो, उस पर हमें काम करना है। डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
An unacceptably high proportion of population continues to suffer from severe and multidimensional deprivation. Thus, a more comprehensive and inclusive approach is required to eradicate poverty. So that completes the concept of poverty. ये आप देख लीजिएगा, causes, effects, solutions. Now we'll come to the new chapter, that is food security in India. Okay, so यहाँ तक चीजें clear है, I believe. Now let's understand about food security. Food security जो है क्या है? पहली बात तो why we are talking about food security at first place. हम लोग food security की बात क्यों कर रहे हैं? Food security की हम बात शायद इसलिए कर रहे हैं, शायद probably there are certain families which are food insecure. उनको फूड का एक्सेस नहीं है. शायद हम आप बैठे हैं तो हमें इसका कंसर्न नहीं है. So food security means availability, accessibility and affordability of food to all the people at all times. It depends on public distribution system. यानी food की availability हो, accessibility हो और affordability हो. So these are the three main pillars, 3 A's of the food security जिस पे हमें काम करना है. Currently, poor section of society are food insecure, and even APL जो above poverty line है might also be food insecure when the country faces national disasters. अभी आपकी बात कर लीजिए. आज हम एक तरह से नेचुरल, एक तरह से मैन मेड डिजास्टर कह लीजिए या फिर एक तरह से एपिडेमिक कह लीजिए. डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक हो रखा है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑलरेडी चल रहा है इस वक्त. होम मिनिस्ट्री जो भी रूल फॉलो कर रही है या जो फॉलो करा रही है हमें आपसे, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही हो रहा है. सो इट इज सो आज क्या है, जो अबव पावर्टी लाइन है, बिलो पावर्टी लाइन तो वर्नेबल है ही है. जो अबव पावर्टी लाइन है उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है. जॉब जाने वाली है, नौकरियां खत्म होने वाली हैं. जो लोग 50,000 1 लाख कमा रहे हैं उनको भी अपने लाइफ के बारे में फ्यूचर नहीं पता है. थिंग्स हैव बिकम सो अनसर्टेन. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है फूड सिक्योरिटी में अलग से काम करे फॉर एवरीबॉडी. बट शायद ये जो पीरियड है ये टेम्पररी है, कुछ महीनों के लिए होगा. थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल. और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट इकोनॉमी खोलेगी एंड थिंग्स विल कम बैक. एंड आई पर्सनली बिलीव, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, पर्सनली मेरा जो मानना है ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज वेरी रिजिलियंट. हमारी जो कैपेसिटी है टू फाइट इन द क्राइसिस वो डेवलप कंट्री से कहीं ज्यादा है. बिकॉज वी हैव फेस सच प्रॉब्लम्स एट मल्टीपल लेवल्स. इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है हिस्टोरिकली, right from prehistorical pre independence phase to post independence phase, we had phases or period जहां हमने challenges face किए हैं. तो हमारी जो कंट्री का resilience है, it is very strong and it's just a testing time, probably a few months, but things will come back to normal. Now coming to who are food insecure, mainly कौन लोग insecure हैं? जो poor हैं, landless होंगे, traditional artisans होंगे, छोटा मोटा मिट्टी का काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं. पेटी मीन स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, अपना छोटा सा कोई रेडी डाल दिया, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो. डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बेगर्स, रोड पे घूम रहे हैं. कैजुअल लेबर्स अर्बन एरियाज में. सोशल ग्रुप्स लाइक SC STs, सेक्शन ऑफ OBCs who have poor land base or low land productivity, people affected by natural disasters and migration. ठीक है, ये एक इम्पैक्ट होता है सबसे मेजर लेवल पर. इश्यूज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन अंडर 5. सो दीज आर मोरली फूड इनसिक्योर. तो हमारे जो मेजर गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो इन पे फोकस करती है. हमारे यहाँ PDS सिस्टम चलता है, वो इन पे फोकस करता है. पहले हमें आपको PDS सिस्टम का एक्सेस नहीं है, अगर है भी तो हम खरीदेंगे नहीं, बिकॉज बिकॉज वी आर रिलेटिवली डूइंग बेटर. तो फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है, जो बॉटम मोस्ट सेक्शन है, मे बी बॉटम 50% उनको हम पहले एड्रेस करें. 1943 में जो है ग्रेट बंगाल फैमिन आया था. उस वक्त देखिए आज हमारा जो फूड प्रोडक्शन है इंडिया का, वो मिलियन टन्स में है. 22, अभी जो गवर्नमेंट का आने वाला है कि 290 मिलियन टन्स जो है हम प्रोड्यूस करेंगे इस साल, और नेक्स्ट ईयर शायद वो और बढ़ जाएगा. और उस वक्त देखिए कितना था, 8.5. ये खैर ये बंगाल का है. तो बंगाल में ग्रेट बंगाल फैमिन आया था, और ग्रेट बंगाल फैमिन की वजह से क्या हुआ था, दैट लेड टू अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग फूड इनसिक्योर, और फिर मास हंगर हुआ था. और मास स्टारवेशन और हंगर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है प्री इंडिपेंडेंस फेज में देखने को मिलती थी. तो मेनली क्या होता है, जैसा मैंने कहा, इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्सेस ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटी ऑफ फूड. तो अगर क्वालिटी ऑफ फूड, अगर आपको फूड मिल भी रहा है लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट गुड, यू विल हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, you will have a problem of inability to work, you will be having a women will have unhealthy pregnancies, and you will have poor nutrition. आप अगर अर्बन रूरल एरियाज में जाओगे, कल को गवर्नमेंट स्कीम में डेवलपमेंट में जाओगे, तो आप देखोगे कि किस लेवल पे काम होता है. आप जाओगे, देयर आर पीपल फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप, पीपल जो है उनके बस घर में 5 बच्चे हैं, and they are not able to they are not able to feed their families.
they are not able to feed and help their population, but still बच्चे वहां पर ज्यादा है, malnutrition है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, चेक करती है, malnutrition है, हेल्प करती है, बट स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स. सो इट इज मेनली लिंक विद पॉवर्टी, और इसलिए हमें वी हैव टू वर्क इन दीज एरियाज, एंड दैट कैन बी एड्रेस ओनली बाय गुड क्वालिटी या गुड एक्सेस ऑफ क्वालिटी फूड, और वहां राशन सिस्टम एक बहुत इफेक्टिव टूल जो है हो जाता है. ओके, नाउ यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ हंगर हाउसहोल्ड्स, ये अलग अलग डेटा है. 99 2000 में देखो तो हंगर हाउसहोल्ड काफी कम हो गया है. अर्लियर इट वाज वेरी हाई. ओके, सो नाउ इट हैज रिड्यूस्ड, बट स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्स. इसको जीरो करना है, दैट इज वेयर द फोकस शुड बी. अच्छा, फूड सिक्योरिटी में इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है, जैसा मैंने कहा. जो भी आपके पुअर स्टेट्स हैं, जैसे अभी हमें पॉवर्टी देखा, तो फूड सिक्योरिटी इज लिंक विद ऑटोमेटिकली विद पॉवर्टी. यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ प्रॉब्लम आपको ज्यादा मिलेगा. बट गवर्नमेंट की कैपेसिटी ग्रीन रेवोल्यूशन से बढ़ गई. आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट का जो फूड कैपेसिटी है वो बढ़ गया. गवर्नमेंट का जो है स्टोरेज है, बफर है, पीडे सिस्टम हो गया, वो सब इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द फूड आउटपुट ऑफ द कंट्री. फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बफर स्टॉक किया, और बफर स्टॉक बना के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लगभग 5.5 लाख जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहां पर वो डिलीवरी कराती है. तो फूड सिक्योरिटी was something was able to address especially through green revolution. राशनिंग का जो सिस्टम है, राशन जो हम लोग देखते हैं, पीडी सिस्टम इज राशनिंग सिस्टम. दे स्टार्ट इन 1940s, और 1960s के बाद इंडिया में राशनिंग इज ऑलमोस्ट इज देयर फॉर एवरीबॉडी इन द कंट्री. ये अलग बात है कि जो रिलेटिवली प्रॉस्परस फैमिली के लोग हैं वो राशनिंग का हेल्प नहीं लेते हैं. तो पीडीएस पहले इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई सबको हम यूनिवर्सली जो है फूड देंगे. फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1965 में 75 में यूज किया गया ताकि बच्चों का अलग से काम किया जाए, आंगनवाड़ी सिस्टम हो, ये सब स्टार्ट हुआ. बाद में 77-78 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. So all these missions were started only to address the food security problem in the country, because अगर 1950s और 60s की बात करते थे तो हर 2-3 साल पे इंडिया में स्टारवेशन या फिर हंगर इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी. अब ये पीडीएस सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहला तो यहाँ पर पीडीएस सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर हमारे फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी बड़े फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके पास जाता है. ये फार्मर जो है मंडीज में अपने अपने प्रोड्यूस जो है बेचते हैं. नाउ गवर्नमेंट उनके पास जाती है थ्रू एफसीआई, एंड दे परचेज द फूड ग्रेन्स फ्रॉम देम. उनसे वो फूड ग्रेन परचेज करते हैं, और गवर्नमेंट उनको एक प्राइस देती है, इसको नाम है एमएसपी, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है. इनफैक्ट इसको हम लोग प्रोक्योरमेंट प्राइस भी बोलते हैं. ठीक है, अब गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक भरती है और फिर वो स्टेट्स को एलोकेट करती है, लेकिन स्टेट्स को जिस पैसे पे देती है उसको बोलते हैं सीआईपी, सेंट्रल इशू प्राइस. आमतौर पे जो फार्मर को देते हैं, जैसे मान लीजिए 30 रुपए दिया हमने, बट यहाँ पर सेंट्रल इशू प्राइस वो 2 रुपए या 3 रुपए होता है. तो ये जो बीच का जो डिफरेंस होता है यही सब्सिडी में चला जाता है. एक तो ये सब्सिडी में जाता है, दूसरा ये जो एफसीआई का पूरा कॉस्ट है वो पूरा भी जो है, तो इतना गवर्नमेंट आप प्रैक्टिकली सोचिए कि सब्सिडी कर रही है. गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के अराउंड सब्सिडीज, 2 लाख करोड़ रुपीस की इक्विवेलेंट सब्सिडीज हर साल देती है पीडी सिस्टम को मैनेज करने के लिए. अब स्टेट्स क्या करते हैं, उनके पास जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं लगभग 5.5 लाख इंडिया में है, उनके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड द कंज्यूमर गेट इट. यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज है, एपीएल एंड बीपीएल, जिनको फूड मिलता है. सो दैट इज हाउ पीडी सिस्टम वर्क्स एंटायरली. नाउ यू कैन सी हियर कैसे हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ी है. 80 मिलियन टन थी 1967 में, और आज 275 मिलियन टन है. और अभी जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट आया अभी 290 के आसपास है, 290 मिलियन टन इस साल का. तो आप देखिए कितना 80 से 275 हो गया. वी आर कैपेसिटी हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली. ये अलग बात थी कि यहाँ पॉपुलेशन भी कम थी, बट पॉपुलेशन बढ़ी है, एट द सेम टाइम हमारी कैपेसिटी भी काफी इंप्रूव हो गई है. ठीक है, देन अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ. ये टेबल एनसीईआरटी से ही है. हिस्ट्री ऑफ पीडी सिस्टम. पीडी सिस्टम आया कैसे? पीडी सिस्टम 1992 से पहले 1960s में ही स्टार्ट हो गया था. इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम में हुआ था, बट 1960 में यूनिवर्सल पीडी सिस्टम हो गया, यानी एवरीबडी कैन परचेज फूड फ्रॉम द राशन शॉप. ये अलग बात था कि यूनिवर्सल था, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड टू एवरीबडी. तो 1992 तक यूनिवर्सल था, बट एक प्रॉब्लम आ रहा था कि पीडी सिस्टम का एक्सेस सबको है, तो बीपीएल को भी एक्सेस है और एपीएल को भी एक्सेस है.
Now BPL people need it, APL do not need it, but they were also getting the benefit of the ration system. तो इसलिए हमने क्या किया, रिवैम्प पीडीएस किया कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स में, ठीक है, हमने कुछ नया इनोवेशन किया, रिवैम्प किया, और यहाँ पर हमने जो है यह देखिए इशू प्राइस है जितने भी देते थे, तो इतने पे आज को मिलता था, तो ये रिवैम्प को किया और यहाँ पर क्या किया, एपीएल बीपीएल कैटेगरी को डिवाइड किया। 1997 में इस रिवैम्प सिस्टम को पूरे इंडिया में अप्लाई कर दिया, और यहाँ हमने पावर्टी पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एपीएल और बीपीएल। अब हमने लकड़ावाला कमेटी या फिर जो भी नेशनल सैंपल सर्वे का जो रिपोर्ट निकाला, या उससे जो हमने पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन को आइडेंटिफाई किया, उनको हमने अलग अलग, अब यहाँ पे 35 केजी फूड ग्रेन देंगे, बीपीएल का रेट अलग होगा, एपीएल का रेट अलग होगा। बीपीएल का जैसे आप देखिए, वीट इज 4.15, राइस इज 5.65, एपीएल का 6.10, राइस 8.30। फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, देन दे केम विद द कांसेप्ट ऑफ अंत्योदया। उन्होंने कहा कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर की बात करिए, अगर 30 करोड़ पॉपुलेशन पुअर है, इस 30 करोड़ में शायद 1-2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत पुअर हैं, मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं, या 1 करोड़ हाउस होल्ड है वो बहुत पुअर है, या 2 करोड़, तो इनको हमको और हेल्प करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा अंत्योदय अन्न योजना में पुअरेस्ट ऑफ पुअर का स्कीम लेके आए, जहां इन्होंने कहा 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स देंगे, और वीट 2 रुपए होगा, राइस जो है 3 रुपीज होगा, और पहले ये 1 करोड़ लोग थे, बाद में इसको 2 करोड़ कर दिया। तो ये 2 करोड़ 1 करोड़ देवा हाउस होल्ड, नॉट पॉपुलेशन, यानी एक घर में 5 लोग होंगे तो 1 करोड़ हाउस होल्ड मतलब 5 करोड़ पॉपुलेशन, 2 करोड़ हाउस होल्ड मतलब 10 करोड़ पॉपुलेशन। तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत हमने 35 किलो फूड ग्रेन जो है हर फैमिली को जो अंत्योदय में आएगा उसको 2 रुपीज 3 रुपीज पे देंगे। फिर बाद में ये देखा गया अन्नपूर्णा स्कीम लेके आए, जिसमें जो इंडिजेंट सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ऊपर जो लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं उनको हम फ्री राशन देंगे 10 केजी का। तो दैट स्कीम केम कॉल्ड अन्नपूर्णा स्कीम। एंड 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जो अपने आप में गेम चेंजर था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड डिफाइन करेंगे, हम बीपीएल लेवल पे नहीं देंगे, हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड डिफाइन करेंगे, एंड एवरीबडी इन द प्रायोरिटी हाउस होल्ड विल गेट 5 केजी पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर 7 लोग हैं तो 7 into 5 is 35, अगर 5 लोग हैं तो 5 into 5 विल बी 25, अगर 8 लोग हैं तो 40 केजी। और यहाँ पे उन्होंने रेट फिर से डिफाइन किया 3 to 1, यानी 2 रुपए का वीट, 3 रुपए का राइस एंड 1 रुपए का मोटा अनाज। सो 3 to 1, यानी आप देखो कि 1992 में जो है राशन वीट 2 रुपए का था और 2 रुपए 34 पैसे का था, और आज 2 रुपए का है। राइस 3 रुपीज का ऑलमोस्ट था, आज भी राइस 3 रुपीज का। मतलब इवन आफ्टर 3 decades ऑफ द राशन सिस्टम, राशन का जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट कितना बढ़ गया होगा, आप इमेजिन कर लो। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर देयर। अच्छा, जहां तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात है 2013 की, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सेज कि हम लोग इंडिया की 66% पॉपुलेशन को उसको कवर करेंगे इसमें। सो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कवर करेंगे। हियर ऑल्सो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, बीपीएल एंड एपीएल, सॉरी अर्बन एंड रूरल। सो अर्बन एंड रूरल, रूरल में 75% पॉपुलेशन कवर करेंगे और अर्बन में 50% कवर करेंगे। तो यही वही बात लिखी हुई है, 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो आज का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत हम लोग ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ रूरल पॉपुलेशन को फ्री, मतलब 3 to 1 रुपीज ऑफ फूड देते हैं, और अर्बन पॉपुलेशन में 50% को हम लोग देते हैं। सो दैट इज हिस्टोरिकली हमने जो है ये जो सारी स्कीम्स है, टारगेटेड पीडीएस 1997 में आया, एपीएल बीपीएल का, एपीएल को अलग, बीपीएल को अलग, अंत्योदय अन्न योजना आया, 1 करोड़ ये हाउस होल्ड है, 1 करोड़ 2 करोड़ हाउस होल्ड है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, अन्नपूर्णा स्कीम आया। तो ये सारे स्कीम्स के तहत अगर आप आज देखोगे तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और पीडीएस सिस्टम रिलेटिवली बहुत इफेक्टिव है। इंडिया इज नो मोर अ कंट्री जहां पर आप सोचिए ना, 66%, यानी अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन है तो 130 करोड़ का 2/3 पॉपुलेशन कितना हो जाता है, लगभग 85 करोड़। 85 करोड़ लोगों को हम लोग, गवर्नमेंट कहती है कि हम 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए पे अनाज देंगे, which is not a easy thing. It has a huge cost on the exchequer. एक बहुत हमारे बजट पे अच्छा खासा इसका प्रेशर जो है आता है। बट फूड सिक्योरिटी में कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट फार्मर से एमएसपी खरीदती है, और एमएसपी हर साल बढ़ता है, तो उससे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन। देन एमएसपी में कुछ स्टेट्स है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं, तो यहीं पे फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फ्यू स्टेट्स। दूसरा ओवर प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं,
हमारा जो बफर स्टॉक है, गवर्नमेंट हम जो है प्रोड्यूस, गवर्नमेंट जो खरीदती है, दैट इज मोर देन व्हाट इज वी नीड। और प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है ड्यू टू इंटेंसिव कल्टीवेशन। ऑलरेडी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में कल डिस्कस किया था। पीडीएस मैल प्रैक्टिसेस भी है, डाइवर्जन होता है, लीकेज होता है, पुअर क्वालिटी इज सोल्ड। अच्छी क्वालिटी को मार्केट में डाल देते हैं और पुअर क्वालिटी मार्केट से उठा के जो है फेयर प्राइस शॉप्स में जो है उसको थ्रू बेच देते हैं। तो वो भी गड़बड़ है, तो गवर्नमेंट इस पे चेक कर रही है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू रिमोट एरियाज, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गया यहाँ पर, या डिफिकल्ट हिली एरियाज हो गया, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर और हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंक्रीज ड्यू टू इन रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो रूरल अर्बन माइग्रेट कर रहा है, उनको फूड सिक्योरिटी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। राशन सिस्टम जो है वो पोर्टेबल नहीं होता है। आपका राशन जो है बना है अपने गांव में, आप शहर में आते हो तो शायद आपको राशन का एक्सेस नहीं होता है। सो इवन दो दे माइट बी दे माइट बी एलिजिबल, बट मुश्किल होता है। सो इंक्रीज इन रूरल अर्बन माइग्रेशन से भी हम कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिफीट हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर देयर। अगर आप ये देखोगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना बफर स्टॉक मेंटेन करती है, अलग अलग टाइम अलग अलग होता है, ये रिक्वायर्ड है, बफर नॉर्म है कि इतना मिनिमम होना चाहिए। उस नॉर्म से ऑलमोस्ट 50% हम हमेशा ज्यादा ही स्टोर करते हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट डबल के अराउंड स्टोर करते हैं। तो ये दिस हैज अ कॉस्ट। अगर मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 6 महीने का राशन एक रखना है, बट आप साल भर का रख ले हो और फिर आप उसको यूज भी नहीं कर पाते हो, सो दैट इज अ कॉस्ट टू द एक्सचेकर। इसमें गवर्नमेंट का बहुत, तो फूड सिक्योरिटी हैज अ हैवी हैज अ हाई कॉस्ट ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक अच्छा खासा हाई कॉस्ट होता है। और इसको हमें ओनली वे टू फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना है कि आप पॉवर्टी कम करिए, आप लोगों की कैपेसिटी बढ़ाइए, लोगों की इनकम बढ़ाइए, इंश्योर स्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन, इंश्योर की एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो लोगों की, एंड दैट विल एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एज वेल। बट दीज प्रॉब्लम विल रिमेन। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना है, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्कीम्स हैं। ठीक है। मेकिंग फार्मिंग मोर रिन्यूमरेटिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर की एवरेज इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, फार्मर्स इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उस पर हमारा जो है फोकस है। ठीक है, कैसे उसको हम रिस्क उसके कम करें, कैसे हम उसकी वल्नरेबिलिटी कम करें, हाउ डू वी इंश्योर दैट फार्मर एक एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की तरह जो है सोचे या काम करे। फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स हैं उनको हम अच्छा इंश्योरेंस दे अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्रॉप, जो फेलियर ऑफ क्रॉप हो जाए या फिर बारिश हो जाए या कोई डिजास्टर आ जाए। Okay, so we have a lot of international organization also who work for food security like FAO, Food and Agriculture Organization. ये यूएन की बॉडी है। Their focus is to eliminate hunger, food insecurity and malnutrition. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 63 में स्टार्ट हुआ था। दे ऑल्सो फोकस ऑन हंगर वर्ल्ड वाइड। देन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सो दे ऑल्सो आर हेल्पिंग द कंट्रीज टू वर्क ऑन दीज एरियाज। सो दीज आर द एरियाज जो कि हम लोग जो है देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इन इंडिया। क्या क्या इश्यूज होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर में, प्रॉब्लम्स क्या होती है, व्हाट नीड्स टू बी डन। ये क्वेश्चंस आप अभी अभी आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो क्या क्या इश्यूज होते हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। बट द क्वेश्चन इज देयर बिकॉज इस पे आपको न्यूज या आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ मिलेगा। डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। ठीक है। रियल चैलेंज टू इंडिया फूड सिक्योरिटी इज पुअर ग्रेन मैनेजमेंट, देन शॉर्टेज ऑफ। अभी इसको अभी नहीं कर पाओगे, बट जब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वो देख लोगे। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। The awareness to the extent of malnutrition despite agricultural growth has led to a need of to converge agriculture and nutrition. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पीडीएस सिस्टम हमने अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज में पढ़ा है। ये सब बहुत सारे जो क्वेश्चन कुछ बच्चों को फेस कर भी रहे होंगे कल, जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है थोड़ा वो जो हमने पढ़ाया है उससे ज्यादा है। सो डोंट वरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू मेक यू फील कि इस तरह क्वेश्चन कल को आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उनको करिए, जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं। So that is how things are there. If you have any question you can ask me. अब मैं कुछ आंसर्स जो है लेने वाला हूं जो बच्चों ने अपने आंसर लिखे हैं। ओके, विल यू डिस्कस। एक तो योजना अभी करने की जरूरत नहीं है। योजना इज समथिंग दैट वंस यू आर थरो विद बेसिक एनसीईआरटीज, जब एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद जब न्यूज़पेपर डेली पढ़ने लगोगे तो योजना कैन बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। ठीक है, तो वो बाद में है। योजना पे मैं अलग से आर्टिकल्स लिखवा के आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में दिलवा देता हूँ।
सो यू कैन डू योजना सेल्फ स्टडी, बट अभी योजना अगर आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हो, बट इफ यू वांट स्पेसिफिकली जो योजना के इश्यूज हैं वो वैसे भी क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जब जो भी स्कीम्स होंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, वेलफेयर स्कीम्स होंगी, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बनाइजेशन, जो भी होगा, ठीक है। बट योजना कैन बी यूज्ड बाद में, अभी नहीं, फिलहाल थिंग्स आर टू अर्ली ना। यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर सबमिट किए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस एक बार दिखाऊंगा जो आंसर्स लोगों ने सबमिट किए हैं। सो लेट्स टेक वन बाय वन। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा मुझे दिख कम रहा है, तो मैं इन आंसर्स को चेक करूंगा। यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन सबमिट हुए हैं। कमेंट ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जिन्होंने भी आंसर लिखे हैं मैं उनको आज चेक करके इनको मैं इनका फीडबैक दूंगा। ओके, नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट राइटिंग आंसर्स। आंसर्स के बारे में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो आई एम श्योर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी फेसिंग कि आंसर को कैसे जो है लिखना है, अ, और आंसर को कैसे जो है हमें एड्रेस करना है, ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करते होंगे। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट। क्योंकि जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा आपको लगता है समझ में आ गया, बट आंसर जब लिखने जाते हो तो यू फेस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन यही वाला ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है। Despite the implementation of various programs for eradication of poverty in India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. Now, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं। अब इसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं। पहला तो पावर्टी है कीवर्ड, ठीक है। देन पावर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन पूछा रहा है, इरेडिकेशन है। देन इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो दीज आर कम कीवर्ड्स। नाउ हाउ टू स्टार्ट। एक बहुत बेसिक तरीका है क्वेश्चन स्टार्ट करने का। यू जस्ट स्टार्ट लाइक बाय डूइंग लाइक दिस। आप ऐसे कर लो, स्टार्ट विद बेसिक्स। आप पावर्टी का डेफिनेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट विद पावर्टी का डेफिनेशन, वेरी बेसिक डेफिनेशन, 2 लाइन 3 लाइन की डेफिनेशन होगी एज ए इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज saying that despite effort of the government through various government scheme, poverty is still existing। यानी पावर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग है, उसके रीजंस क्या क्या है? हमने एक देखा कि पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम का पुअर इंप्लीमेंटेशन है। फिर आप कॉमन सेंस यूज करिए, अवेयरनेस हो सकता है, ओके। देन गवर्नमेंट स्कीम्स एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। पुअर इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सी स्कीम है? मनरेगा होगा, या फिर पीडीएस सिस्टम हो सकता है, या फिर स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हो सकती हैं, अवेयरनेस हो सकता है, या फिर यू नो सॉरी, और क्या क्या हो सकता है सोचिए पुअर इंप्लीमेंटेशन में, गवर्नमेंट स्कीम्स में। अब पुअर इंप्लीमेंटेशन में क्यों पुअर इंप्लीमेंटेशन है, ये स्टेट वाइज आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। सम स्टेट्स आर डूइंग बेटर, जहाँ पे पावर्टी एलिवेशन, फॉर एग्जांपल केरला एंड यहाँ पर एक और ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर सकते हो। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। जिन स्टेट्स में एजुकेशन हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी हैं वहां पर पावर्टी एलिवेशन बेटर है। स्टेट वाइज यू कैन से द नॉर्दर्न स्टेट्स आर डूइंग रिलेटिवली पुअरर देन द सदर्न स्टेट्स हु आर डूइंग बेटर। ऑल्सो द स्टेट्स हु आर इंडस्ट्रियलाइज्ड, वहां पर इनकम ज्यादा है और पावर्टी का लेवल जो है वहां पे कम है। सो यू कैन लिस्ट द रीजंस, उस रीजन को एनालाइज करो तुम्हारे हिसाब से। देन यू कैन गिव सम सजेशंस, ठीक है। कैसे करोगे? सजेशन दे सकते हो कि पीडीएस सिस्टम को और इफेक्टिव बनाना होगा। टेक्नोलॉजी के यूज से यू कैन इम्प्रूव द मैल प्रैक्टिस इन द पीडीएस सिस्टम। यू कैन ऑल्सो वर्क इनटू वेरियस वेज थ्रू विच कि लोग को अवेयरनेस हो। टेक्नोलॉजी के यूज से ह्यूमन एलिमेंट को हम कम कर सकते हैं। पीडीएस सिस्टम में जो राशन सिस्टम है, जो क्वालिटी है, वो डाइवर्जन मार्केट में ना हो। एट द सेम टाइम पुअर जो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे आप कह सकते हो मिड डे मील स्कीम्स हो सकती हो गई, या पोषण अभियान हो सकती हैं, या फिर अवेयरनेस जनरेशन हो गया, या सैनिटेशन प्रोग्राम हो गया। यू वी नीड अ वेरी कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच टू एड्रेस पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसके बारे में आप बात करो, डिस्कस करो। दूसरा,
ऑलवेज मान लो 200 वर्ड का आप आंसर लिख रहे हो, तो राइट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहला तो इंट्रोडक्शन, एक बेसिक रूल आप फॉलो कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी बिटवीन मोर देन 10 to 15% ऑफ द वर्ड लिमिट। यानी 200 वर्ड का जो इंट्रोडक्शन है, आप 20 से 30 वर्ड से ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है। एक एक बच्चों की आदत होती है कि वो लोग माहौल बनाते हैं, बहुत सारा लिखते हैं, आपको उसको अवॉइड करो। नो, इंट्रोडक्शन शुड बी 10%, आपको 20-25 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखना है। देन कम टू बॉडी। इंट्रोडक्शन कैन बी स्टार्ट, आप इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप एक बेसिक थंब रूल फॉलो कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो और उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो। यू कैन आइडेंटिफाई द कीवर्ड एंड उसका एक लाइन दो लाइन का डेफिनेशन लिखो, एंड देन यू कैन कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बॉडी में फिर क्वेश्चन क्या है, आपने पॉवर्टी डिफाइन कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी, पुअर रीजंस फॉर पुअर इम्प्लीमेंटेशन एज सच, ब्ला ब्ला ब्ला, 1 2 3 4 5 6। तो अब होना क्या चाहिए, सोल्यूशन आप फिर प्रोवाइड करोगे। तो उसमें तो बॉडी में प्रॉब्लम, सोल्यूशन, पॉजिटिव, चैलेंजेस, नेगेटिव्स, वो सारा, दिस बॉडी शुड बी अराउंड 70-75% ऑफ द वर्ड लिमिट। यानी लगभग आप कह सकते हो कि आपका जो है, अगर हम 75% कहते हैं, यानी 150 वर्ड आपका यहाँ जाना चाहिए। ठीक है। देन कम द कंक्लूजन। कंक्लूजन छोटा होना चाहिए, 2 लाइन का होना चाहिए। छोटा एक कंक्लूजन 2 लाइन का आप लिखोगे। कोई भी पैराग्राफ 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी आइडली 40 to 50 वर्ड्स में आप एक पैराग्राफ लिखोगे। जैसे मैं अभी आपको आंसर दिखाता हूँ, अब अगर मैं इस आंसर को लिखता हूँ, तो एक आंसर देखोगे एक ही पैराग्राफ है। ठीक है, अब पूरा एक पैराग्राफ है, तो ये एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होना चाहिए, फिर बॉडी के भी 2-3 पैराग्राफ होना चाहिए, फिर कंक्लूजन का पैराग्राफ होना चाहिए। सो विच आई मीन टू से दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन पैराग्राफ, यू डिवाइड योर आंसर बिटवीन मल्टीपल पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ पे का फोकस ये होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है या बॉडी में प्रॉब्लम की बात कर रहा है, अगले अगले जो है पैराग्राफ में आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो, या 2 पैराग्राफ में जो है आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, थर्ड में सोल्यूशन की बात कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट इन अ टाइम बाउंड मैनर। आमतौर पे जब आप आंसर लिखोगे, तो आंसर जो है टाइम का 10, मे बी अगर हम देखते हैं 20 क्वेश्चंस हैं और आपको मेंस में 180 मिनट्स मिलता है, तो 180 मिनट्स में 20 क्वेश्चन मींस यू गेट 9 मिनट्स पर क्वेश्चन। सो थ्रेशोल्ड इज 10 मिनट्स, बट अगर आज पहली बार स्टार्ट करोगे तो आपको 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा, 40 मिनट भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, व्हाट बैकग्राउंड यू हैव। Now people from humanities will take less time, people from science will have to take, उनको ज्यादा टाइम लगेगा। एंड दैट इज वेयर आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग। दूसरा क्या है, वंस व्हेन यू रीड योर, जब आप रिवीजन करते हो, तो ऑलवेज डेवलप मेंटल पिक्चर। आप सिर्फ पढ़ो मत, आप एक वॉक कर लो, सोच लो इश्यूज के बारे में। अच्छा, पॉवर्टी क्या है, तरीके क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, गेट अ मेंटल पिक्चर, थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट। डोंट फोकस ऑन मेमोराइजेशन, याद करने की कोशिश मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इश्यूज को समझो। मैं स्टोरी की तरह से समझा रहा हूँ बिकॉज आई नो कि स्टोरी की तरह जब समझोगे तो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मच ल्यूसिड, आपका रिकॉल फैक्टर अच्छा होगा। उसके बाद जब आंसर लिखो तो इंश्योर करो कि आंसर लिखते टाइम एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, तब आंसर लिखो। आंसर लिखते टाइम किताब या कॉपी से मत लिखो। ठीक है। सो आप शुरू में लिखोगे तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स भी लग सकता है, बट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। सो ये एक बेसिक रूल ऑफ थंब फॉलो कर सकते हो कि आप जो है कीवर्ड से स्टार्ट करो, डिफाइन इट, कम टू द बॉडी। अगेन, हर क्वेश्चन अलग अलग है। एंड वाइल राइटिंग आंसर, एक बात और ध्यान देना कि आंसर लिखते टाइम क्वेश्चन को कम से कम 2 बार, 1-2 बार जरूर पढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर लिखते टाइम आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भूल जाते हो। यू टेंड टू गो मोर बियॉन्ड द क्वेश्चन, एंड हेंस इन बिटवीन, बिकॉज द आंसर शुड स्टिक टू द सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर यूपीएससी है, ये एक यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कि यहाँ कुछ भी लिखोगे। नंबर ऐसे नहीं मिलेगा आपको, नंबर तभी मिलेगा वंस यू राइट रेलेवेंट व्हाट इज देयर फॉर द कंपटीशन। तो अगर रेलेवेंट एरिया लिखोगे तभी आपको जो है आंसर में नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। यू हैव टू फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग आंसर्स, जहां पे आप स्ट्रक्चर बनाओगे, फ्लो बनाओगे, एंड एक रेगुलर आपको लिखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग स्किल जो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हो, इट टेक्स 6 months to 9 months to 10 months, ऑलमोस्ट ईयर लग सकता है। एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। इट्स अ स्किल विच टेक्स टाइम। पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, बट दिस टेक्स टाइम। सो दैट इज वाई मैं इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन अटेंड मत करिए, आप 2 ही करिए, एक ही करिए, 2 ही करिए, बट बाकी क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अच्छा ठीक है, शायद हो सकता है यू हैव लेस इन्फॉर्मेशन, तो आज उस पर हम आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन कल को जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, कंटेंट मेरा इंप्रूव हो जाएगा, वंस माई थॉट हैज इंप्रूव, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट इंप्रूव हो गया, देन आई वुड बी एबल टू राइट मच बेटर आंसर्स। बट यू हैव टू स्टार्ट। मैं बिल्कुल समझता हूँ, जब
जब पहली लाइन क्या होनी चाहिए, पहला वर्ड क्या होना चाहिए, यू कैन स्टार्ट विद बेसिक रूल ऑफ थंब, डेफिनेशन से स्टार्ट करो। दूसरा, लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू यूज हाई फंडू वर्ड इन योर आंसर्स, दैट विल नॉट वर्क। स्टिक टू द बेसिक। एनसीईआरटी जो डेफिनेशन, जिस तरह से एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखा है, बस सोचो कि मुझे वही रेप्लिकेट करना है। क्लास 8th या 9th का जो एनसीईआरटी है, बस आपको वही रेप्लिकेट करना है आंसर में, उस तरीके से। रेप्लिकेट मतलब यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर थिंग, बट यू हैव टू राइट द वे, द लैंग्वेज जो लिखी हुई है उस तरह से आपको लिखना है। क्या आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की जो किताब लिखी हुई है उसको भी नहीं लिख पाओगे अपने अपने लेवल पर? तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। दैट इज हाउ यू शुड should be focusing upon। ठीक है ना? एनी क्वेश्चंस यू हैव गाइस? अच्छा ठीक है, अनन्या हैज अ डाउट, शी मैसेज मी। ओके ठीक है, ये मैं अलग से देख लूंगा। ओके सो ये मैं अलग से देख लूंगा। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? आई बिलीव कोई और सवाल किसी को? ओके, टुमारो विल बी करंट अफेयर क्लास, करंट अफेयर नीरज सर लेंगे आपकी। ठीक है, जस्ट वांट टू मेंशन दैट पीपल हु आर न्यू। तो ये कीप द, अच्छा अब आपका नाइन्थ का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सारे चारों चैप्टर पढ़ लोगे, और ये एनसीईआरटी जो 9th वाला जो पूरा है, ये पीडीएफ में मेल करा दूंगा। और बाद में जो सारा कंटेंट है इसको मैं क्रिस्प करके, शॉर्ट मतलब क्रिस्प करके, मतलब कंसोलिडेट करके, इमेज में हटा के मैं एक पीडीएफ बना दूंगा पूरे एनसीईआरटी की। तो इकोनॉमिक्स का 9th 10th 11th पूरा एक एनसीईआरटी में आ जाएगा। इस तरह से हिस्ट्री और इकोनॉमी पॉलिटी सबका एक एक जगह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप ढंग से एनसीईआरटी पढ़ो, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ncrt.nic.in। ठीक है, आप वहां से हाईलाइट कर लो, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बट आई वांट यू टू रीड इट एटलीस्ट 2 बार, हर चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सो आई विल मीट ऑन डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, हम लोग 10th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी एक एनसीईआरटी की बुक आज कंप्लीट हो गई, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चंस को देखिए, एक एक चीज डिटेल में पढ़िएगा एनसीईआरटी को। उसमें जो क्वेश्चंस है, इमेजेस है, डायग्राम है, टेक योर टाइम व्हाइल रीडिंग एनसीईआरटी। डोंट रीड इन अ रश, अरे लग रहा है अरे तो बच्चे वाली किताब है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा, नहीं। टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट स्लोली। थॉट प्रोसेस होगा, लर्निंग होगा, ये प्रोसेस स्लो होता है। यू हैव टू लर्न एंड ग्रो। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मैं आपको कह दूं कि भाई इसको 2 दिन में पढ़ लेना है, पढ़ तो लोगे बट समझ नहीं पाओगे। अगर समझ भी पाओगे तो उसको एब्जॉर्ब करना होगा, या एसिमुलेट करना होगा, या आंसर या ऐसे में यूज करना होगा। दैट टेक्स टाइम बेटा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उस पर भी काम करें। आप जब पढ़ते हो तो स्टोरी पढ़ो, समझो क्या है, क्यों क्यों इतना फोकस किया जा रहा है एनसीईआरटीज पढ़ने पे, सी द लैंग्वेज कैसे बन रही है, कैन यू रेप्लिकेट इट इन योर आंसर्स। दे द आइडिया बिहाइंड एनसीईआरटी इज दैट दे विल पुश यू टू थिंक। So let's work on those areas. So thank you very much for your time and patience. So we'll meet on Thursday. ठीक है, चलिए। तो आपका टारगेट चारों चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट करने हैं। So we'll meet in the next class. Take care. Bye.